Yeah, so am I audible? Yes, you are. Okay, thank you, sir. So, welcome to today's episode of Learn from the Leaders. Today's webinar, Indian Art, Culture and Theatre, is being conducted by AP Goyal Shimla University in collaboration with Venkateshwara Open University and Sri Venkateshwara University. They say a work of art is a world in itself, reflecting senses and emotions of the artists worldwide. Indian art and culture is like an ocean, floating through the world. The spread of Indian art and culture has made it more profound and rich. It communes the soul of the artist and the audience to different things and different issues in the world. It is a source of inspiration and understanding. Personalities related to theatre has played very important role in spreading the rich cultural practices, the Indian heritage and art of India. This has given social acceptance and respect to India after the unending struggle during the colonial rule. On behalf of the university, I take extreme pleasure to welcome Padma Shri Balwant Thakurji, our eminent speaker. यार उसको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, मैं नंबर देता हूँ, बात करो जरा. Shri S.N. Joshi ji, who will chair the webinar. Professor Dr. R.K. Chaudhary, Vice Chancellor Venkateshwara Open University and Pro-Chancellor AP Goyal Shimla University. Our guest of honor, Dr. Ashwini Sharma, the moderator for the webinar, in the gracious presence of Honorable Vice Chancellor AP Goyal Shimla University, Professor Dr. Ramesh Chauhan, Registrar AP Goyal Shimla University, Dr. Anil Pal, and Engineer Suman Vikrantji, the advisor. With this, I would like to invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ramesh Chauhan sir, to please welcome our guests for today's episode. Thank you, Prachi. Very good morning to all of you. Our today's chief guest. Sorry to interrupt. Balwant Thakur is having some network issue. He'll be joining shortly. Right, sir. Right, sir. Okay, we are contacting him. Right, sir. So today's main guest speakers, we have two of the guest speakers, very eminent speakers, and one of them, as Dr. Prachi said, Mr. Balwant Thakur. He is a very reputed theatre personality and is at present cultural diplomat to foreign countries also, and sir, probably due to some networking issues, not able to join now. He has been awarded Indian honor in performing arts also. That is Sangeet Natak Academy Award. He had participated more than 300 national theatre festivals and holding of more than 6,000 events. That is a record in the country. He's known as a magic man of theatre. He has brought Dogri theatre to limelight in the state of Jammu and Kashmir and at the national level also. And since 1983 onward, many hundreds of award goes to him, And Department of Culture, Government of India awarded him the National Senior Fellowship for 3 years. He's a recipient of another very eminent prestigious award, that is Sanskriti Award for Direction Theatre. And for children also, in the children theatre, he has his contribution. He remained the pioneer, And as a playwright, you just imagine he has written 27 original plays that goes to him, He conducted more than 500 shows for theatre for a social cause, for a social change in the remote villages of Jammu and Kashmir, He remained film writer, film director, and he produced more than 60 productions in theatre that mobilizing peace in Jammu and Kashmir. He was conferred Padma Shri by President of India, and he worked as Secretary Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Language more than a decade.
also worked Regional Director of Indian Council of Cultural Relations, Ministry of External Affairs. At present, Mr. Balwant Thakur, he is working as Cultural Diplomat of India in the Ministry of External Affairs, where, as he has not joined, but just in his absence, I'm welcoming him. We are very happy on behalf of the university, or my teachers, or my students. They are very happy to having him here amidst us, Another personality is a Shimlite, Sri Srinivas Joshi Sahab. He's a retired IAS officer, very known person in Simla. He's a literary person. He's a very soft speaking and very kind, sweet person. Let me tell you, he has been holding many important posts in the government of Himachal Pradesh. He was Director Language and Culture. He was Deputy Commissioner of Kangra also. I know him since long. I know his contribution for the APG University also. He had been on our panels, he has selected our faculties. He has attended many seminars, and he has helped in many ways, Sir, we are very, very happy on behalf of all the students and faculties and my deans, my registrar, everyone, sir. We welcome you. And he is also a man of theater. For the promotion of culture and art, he is also a recipient of many awards. I would mention one, two, He has been awarded Prasar Bharati Award, and he has been awarded Shimla ADC Award for dramatics, and he has also directed many plays, and he has participated more than 100 plays, those broadcasted from Simla. And he has also acted in the films, He is chairing today's session. And besides that, sir is a literary person. And we find, he's a columnist, we find his writings in the Dainik Jagran and in the Tribune, weekly and fortnightly. Let me mention one incident when we had one exhibition in the Gaiety Theatre. Sir had come there and he interacted with our Indian students, foreign students, and he has covered the exhibition in such a way that he made a full feature on that, which was published in the Tribune. Sir, we have not forgotten your association with us and your kindness. So both of these people, let me tell my faculty and students and audience, both of these personalities they are very eminent from art and theater. And art is, it is said that art is outside, which we can see. But this art comes from the heart, Heart is inside, So it comes because of the grace of God, So all these people are full of grace of God, and we should learn, we should get inspired from them for our own life. Thank you very much. Chauhan Sahab, I want to congratulate you first for being the Vice Chancellor of this university, and really, grateful to you that you have invited me to attend this function. Sir, fill in the blanks, sir. Okay, whatever it is, you are sitting on the chair of the Vice Chancellor of this university. That's a great thing. Thank you, sir. Thank you. Unmute. Prachi. Naini pad rahi hai. Dr. Prachi. Yourself first. Yeah. So sorry. Thank you so much, sir. Thank you for such a warm welcome. I would like to invite... Prachi, I'm sorry. I've Yes, forgotten, because with such a eminent speaker, I've forgotten that we have our Pro-Vice Chancellor, respected Dr. Ramesh Kumar Chaudhary, sir. It's only because of him, that we are able to do all these things, So we welcome you, sir, in this webinar. However, we are doing it with the collaboration of your university, Venkateshwara University, and Dr. Ashwini Sharma. He's a professor in the Department of Journalism, Mass Communication, very eminent journalist. You all know, and at present he's looking after, he's heading the Outlook, earlier he was in the Indian Express. He's the moderator. He's moderating our all series of webinars. I welcome you very much, sir.
without your cooperation, it was not possible, sir. So I welcome all the guests. Thank you, Prachi. Thank you, sir. Now I would like to invite Honorable Vice Chancellor Venkateshwara Open University and our Honorable Pro Chancellor AP Goel Shimla University, Professor Dr. R.K. Chaudhary, to please bless this session and the series Learn from the Leaders. Good morning to one and all. Before I start my welcome note, Suniji, the network problem of the Balwant Thakurji has been resolved, or what we are expecting today? No, sir. He's still out of reach. He was in the theater actually to inaugurate this series. So there's a network issue. Yeah. I'm trying to keep the mind, and the same way we have to move on. I again welcome to all of you, ladies and gentlemen, the respected Padam Shri Balwant Thakurji, who is yet to join this program. Basically, this is a live session with Balwant Thakurji, and people from different part of the country have joined to listen him. And the most important today with us is Honorable S.N. Joshi Sahab, a bureaucrat, retired IAS, a bureaucrat who has a art in heart. So that's the things, and I'm very happy, though my tenure was very volcanic. I didn't get a direct chance to meet Joshi Sahab and to interact, but I know with Ramesh Chauhanji that his contribution for the APG Shimla University is immense, and he was closely connected with the. Sorry, sir. Sorry to interrupt. Mr. Balwant Thakur has joined now. That's great. That's great. So you can welcome. He is there on the screen itself. So yeah. I take this opportunity. That's a huge relief. So Padam Shri Balwant Thakurji from the APG Shimla Universities, and from Sri Venkateshwara University Gajraula and Venkateshwara Open University Arunachal Pradesh. So you may see that we are extending a very India level welcome to Balwant Thakurji, right from Shimla to Arunachal and heart of the country from UP. So today I am not supposed to speak anything because already we are late, and everybody is very curious and excited to have a live session with Balwant Thakurji as S.N. Joshi ji. So I will not take much time, just extend my real greetings and heartily welcome. And this program would not have been possible unless until our Sri Asuni ji were not so kind enough. He is basically a iron hand behind these universities, and he is trying to help to the students and faculties by connecting different personalities of the country at this hard time when we all are locked inside the homes with just little bit sigh of relief with the COVID second surge. I am looking that Mr. Arunesh Jhaji is also with us, the Chief Bureau of the Swadesh, Haryana. I will like to extend my welcome to Engineer Suman Bikranji, our advisor. And we have a very diverse kind of the participants and viewer today. So I will not much take time. I hope that Padam Shri Balwant Thakurji will accept our greetings and warm welcome. We really feel proud to find you on the platform of the APG Shimla University, though it is a virtually. And we wish you a very good luck for your future endeavor. I came to know that you are going to take over the charge of the Mauritius, and I and along with Suniji have a plan to visit sometime Mauritius to see you and to enjoy the Mauritius. So with all these things, because I'm very computing guy, and there is no I'm not like S.N. Joshi ji, which is being a bureaucrat, has so much interest and so much contribution in the field of the art.
So we will be better listener and enjoy this program. So I'm over to moderator Suniji and Prachi. Prachi, thank you for taking so much pain and making the things happy. Thank you to all of you and warm welcome to all of you, ladies and gentlemen. Now going to listen Padam Shri Balwant Thakur ji at the APG Simla University virtual platform. Thank you to all of you. Thank you so much, sir. Before proceeding further, I would like to introduce our guests for the webinar today. Our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ramesh Chauhan, has already introduced Sir well enough, but I would like to add certain things to it. So first of all, our main speaker for the day is Padam Shri Balwant Thakur ji. So, sir, you are the magic man of theatre and a person with so much creativity, so much valor in yourself that it can't be described in words. But still, a few things, notable things that you have done, I would like to quote some of them. So, sir, you have been decorated with the highest Indian order in performing arts, which is the Sangeet Natak Academy Award for Direction in Theatre. And you have been credited for being the youngest theatre director of India, being participating in over 300 national theatre festivals as a director, and holding over 6,000 events, which is a record in our country. So you have outstanding visual poetics to your credit on stage. Some of them are Suno Ek Kahani, Chauraha, Mata Ki Kahani, and Mahaboj. You have been credited for bringing the Dogri theatre to national and international limelight, and you have been highly instrumental in creating a new cultural renaissance in the Union Territory of Jammu and Kashmir. You have been also awarded with the State Academy Award by the State Academy Theatre Festival for the best production in 1983. And one of your historic contributions in the field of Indian culture is the creation of a brand cultural organization called Natrang, which was way back in 1983. You have been recognized for your outstanding contribution in Indian theatre by the Department of Culture, Government of India, and you have been awarded the National Senior Fellowship for 3 years to do a research on the performing modes of Jammu. In 1992, you were again decorated with yet another prestigious award of the country, which is the Sanskriti Award for Direction in Theatre, which is given once in 3 years to a theatre person. Same year, you were also awarded the Ford Foundation Grant Award for your research project, Search for a New Theatre Language. Your endeavors have been awarded the rarest honors like Abhinayak Samman, Saptrishi Samman, Naksh Samman, and Kala Nidhi Puraskar. In children's theatre, you have been the very few theatre directors of the country who have revolutionized the theatre scene and have evolved a new dramaticary for children. Your plays like Mere Hisse Ki Dhoop Kahan Hai, Aap Hamare Hain Kaun, Bhag Beta Bhag are being credited as one of the most demanded children productions which have featured in almost all of the major theatre events in India. As a playwright, you have 27 original plays to your credit, which are considered as one of the significant contributions to the Indian theatre. This has been a social change under which you have conducted 500 shows in the remote villages of Jammu and Kashmir, bringing a revolutionary change in the mindset of the rural folk of the Indo-Pak border villages. You have also worked as a film writer and a director, making many films like Is Gran Ki Swarg Banalo, Kashmir Life, Rangla Jammu, and Gulab Gatha. Sir, आपकी तारीफ में जितना कहे जाए उतना कम है. Back home, you were also honored with so many awards like Dogri Sanstha, Jammu Citizen Council, Chamber of Commerce, Amar Rajput Sabha, Brahmin Pratinidhi Sabha, J&K Fine Arts Society, to name a very few awards. Sir, in 2013, you were conferred with the most prestigious award by the President of India, the title of Padam Shri. J&K's highest state award for Life Achievement Award in 2017, Prithvi Raj Kapoor Samman in 2017, B.V. Krant Memorial Award for Lifetime Achievement 2018,
and Gandhi at 150 by Indian Association of South Africa. You have worked in so many different arenas, and currently you are working as the Cultural Diplomat of India in the Ministry of External Affairs at Government of India. Sir, I take extreme pleasure to welcome you here today for the webinar. We also have with us Sri Srinivas Joshi ji, who will be chairing today's session. Sir, after obtaining MA in Political Science and Economics, you have worked as an IS officer with the Himachal Pradesh and many more states. You have worked as DC Kangra, and other than the government works, you have also worked as a convener for the Himachal Pradesh. Sir, you have to your credit many books that you have authored, including Begmo Ki Su, Hum Nahi Sudhrenge, Health Communication, and 3 books for the National Book Trust. You have also been awarded Prasar Bharati Award for Promotion of Culture and Arts, the Shimla ADC Award for Promotion of Dramatics, Play the Gyali Ki Raat, first in all India drama competition held by Prasar Bharati. You have been a columnist for Dainik Jagran and the Tribune. You have to your credit several plays that you have written, directed, and staged at the very vulnerable Gaiety Theatre and even outside Shimla. You have participated in about 100 plays broadcasted from Shimla, and apart from being a bureaucrat, you have also acted in films like Nain Sukh and Ram Kumar, directed by Amit Dattaji. Sir, we are honored to have you here with us today. And with this, I would like to hand over the session to our moderator, Dr. Ashwini Sharma ji. Dr. Ashwini Sharma ji is a guest faculty at the School of Media and Mass Communication at AP Goel Shimla University, a retired bureau chief with Indian Express, and currently working in the Outlook Media. Sir, I would like to hand over the session to you now. Thank you, Dr. Prachi. And I see it as a big responsibility, especially the kind of panel in front of me. So I feel privileged having given the opportunity to moderate this session. I welcome Balwant ji. He is my old friend. He is my class fellow. This many people doesn't know, but he has grown to such a level that I can't imagine. And it's because of sheer hard work he has put in. In front of me is also Mr. Joshi. When I came to Shimla, his daughter used to work with me, Shaili Joshi. And I have heard a lot about Joshi ji even before coming to Shimla. And it came almost true when I saw his working in the government and in the social circle, in the theater. Yeah, welcome, sir. Joshi ji, you have given time to us, and it's a great opportunity. Balwant Thakur, actually, I got motivated a few days back. There was a program of art, language, culture in which he was invited. And you know, Balwant Thakur has a connection with Himachal Pradesh. He produced, he wrote, conceived, and directed Himachal Ki Kahani, to which the credit also goes to S.N. Joshi ji, who picked up Balwant Thakur to create that kind of an impact in Himachal Pradesh. And it was a great work. It is still a documented work, and I feel it need to be carried further. I also welcome our Pro-Chancellor, Dr. Ramesh Chaudhary, Vice Chancellor Ramesh Chauhan ji, and a lot of dignitaries in front of me. I have few people on screen who were working with Balwant Thakur when he started working in Himachal, on Himachal Ki Kahani. And we have a lot of teachers, we have students listening to Balwant Thakur, because when his name was given on social media, so a lot of calls I received that we want to hear Balwant Thakur. It's a big name. And there's quite an excitement to listen to you. And because I have been associated with you, and I can tell my audience here that when he formed that iconic Natrang in Jammu,
I was the first person to write a story on that, to publicize and give pictures of two of his friends. I was also his friend, but they were more closer to him. And there were 3 trio. I published that picture, and that became very popular. I may still be having that kind of document with me. And after that, Balwantji has worked tirelessly. And I can imagine the kind of work he has put in. When he traveled from Riyasi to have a study in Himachal Pradesh University, he used to live in a very humble and decent place, where he was telling me that even the winters used to be very harsh and summers were equally harsh there. And he worked very hard. He continued his studies, but he made his impact within few months of coming to Jammu. He created his own impact, and now he's a household name in Jammu. And he has not risen to national level, but international level, which is a very creditable thing for people of Jammu, especially that he has worked for the Dogri theatre. So that's a big thing. And before I invite Balwantji to share his life's experience, some of his anecdotes, and his hard work, and the kind of discipline he has in his life to rise to that level, I will invite Joshi-ji to say a few words for Balwant Thakur, and also narrate his experiences about having conceived Himachal Ki Kahani, which Balwant Thakur actually delivered to the satisfaction of a lot of people in Himachal Pradesh. So Joshi-ji, kindly say a few words, whatever you feel free to say in honor of Balwant Thakur, and also your experiences in the service, in the cultural works, the theatre you have done, and how Balwant Thakur took the theatre to that international level. Joshi-ji. Thank you, Ashwani. And welcome Balwant and all others who are here, whom I can see. मैं अपनी बात हिंदुस्तानी में रखना पसंद करूंगा, लेकिन बीच बीच में जैसा आपने कहा कि कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो अंग्रेजी में भी बोलूंगा। लेकिन बलवंत ठाकुर से मुलाकात कैसे हुई, ये प्रश्न आपने किया है। तो 1984 की बात करता हूं, जब मैं भाषा संस्कृति विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया, तब मैंने भाषा विभाग में एक कार्यक्रम आरंभ किया था, और वो कार्यक्रम था नाट्य उत्सव का। नाट्य उत्सव होते थे जो 1 सप्ताह भर तक चलते थे, और अगले दिन उन नाटकों की समीक्षा होती थी, जिसमें दिग्गज नाटककार मनोहर सिंह, नेमीचंद्र जैन, जैन कौशल जैसे व्यक्ति आया करते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नेमीचंद्र जैन की एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था नटरंग। नटरंग जो बलवंत ठाकुर का है, वो नटरंग मंचन के लिए है। ये नटरंग पत्रिका थी जिसमें नाटकों के बारे में ही जिक्र होता था। तो 1988 में जब हमने उत्सव किया, 1988 में 40 साल हिमाचल प्रदेश के हुए थे, मैंने सोचा कि एक हिमाचल की कहानी बनाई जाए और एक नाटक करके वो सारी बातें हिमाचल में जो आज तक गुजरी हैं वो लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए। तो इसके लिए, क्योंकि तीनों समीक्षाकार ने बलवंत ठाकुर की बड़ी प्रशंसा करी थी, मैं बलवंत ठाकुर से बहुत प्रभावित हुआ था। उनका नाटक था बाबा जित्तो, जो डोगरी में हुआ था। बाबा जित्तो बड़ा मशहूर नाटक हुआ है, उसके मेरे ख्याल से 300 से अधिक इन्होंने प्रस्तुतियां की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कार्य को, हिमाचल की कहानी को बनाने के लिए बलवंत ठाकुर को लिया जाए। और सब काम मैंने पटकथा लेखन से लेकर निर्देशन से लेकर कलाकारों के चयन तक का काम मैंने बलवंत ठाकुर पर ही सौंप दिया, और बलवंत ठाकुर ने उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से किया। इसके अनगिनत प्रोग्राम हुए, पूरे हिमाचल प्रदेश में हुए, और अनगिनत प्रोग्रामों में ये जो इसने जो प्रशंसा प्राप्त करी, उससे विभाग तो
वाहवाही उसकी विभाग की होती थी। लेकिन एक बात हुई कि जब इसका पहली प्रोडक्शन शिमला में हो रही थी सीपीआरआई में। सीपीआरआई का स्टेज आपने देखा होगा कि वो गेटी थिएटर से काफी बड़ा है, लेकिन क्योंकि वो भी हमारे को छोटा हो रहा था इसलिए हमने कुछ तख्तपोश बना दिए थे, फोल्डिंग तख्तपोश, और वो तख्तपोश बना करके 12 तख्तपोश वहां लगाए और तब वो स्टेज बना जिसमें हिमाचल की कहानी हो सकता था। और इस तरह से मैंने 40 तख्तपोश बनवाए थे फोल्डिंग, जो गांव गांव में अगर आपने जाना है और ये प्रदर्शित करनी है, नाटक को प्रदर्शित करना है, तो आप फटाफट एक स्टेज को तैयार कर लें। इसलिए जब पहला नाटक हुआ सीपीआरआई में तब मेरी बदली हो गई। सरकार है जो कोशिश करी थी मैंने कि पूरी तरह से मैं इसको संपन्न कर पाऊं, वो नहीं कर पाया। मेरी बदली हो गई और मैं सचिवालय में चला। मैंने जो पहला नाटक ये देखा वो एज डायरेक्टर ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर नहीं देखा, वो देखा था एज डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। लैंग्वेज एंड कल्चर मेरे साथ वहां भी था, हालांकि मैं डेप्टी सेक्रेटरी था। डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर मैंने वो नाटक देखा सर। लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि जिस किसान को मैंने चुना था और जिसने वो बीज बोए थे वो अब एक फलदार वृक्ष बन गए थे। बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके कि लोगों ने उसकी प्रशंसा करी। तब तत्कालीन स्पीकर विद्या स्टोक्स उस दिन वहां मौजूद थी और उन्होंने भी उसकी नाटक की बहुत प्रशंसा करी थी। बलवंत एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अभिनेता के शरीर से दर्शकों को संप्रेषण करवाने में निपुण है। इनको फिजिकल थिएटर के लिए माना जाता है। फिजिकल थिएटर ईडियम का प्रयोग इन्होंने अपने नाटकों में किया है और उसी के साथ ये मिक्स करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के फोक थिएटर, और इतनी बढ़िया प्रस्तुति होती है कि आप दंग रह जाते हैं कि कितने अच्छी तरह से इन्होंने एक व्यक्ति को पेड़ बना दिया, कुछ व्यक्तियों को लेकर के किले का गेट बना दिया। ये केवल फिजिकल थिएटर में ही संभव हो सकता है। मैंने ये भी सुना है कि बलवंत ठाकुर ने, जैसे प्राची ने अभी कहा, महाभोज का वर्णन किया। जब महाभोज नाटक किया जा रहा था तो लोगों ने, उसके जो कलाकार थे, उन्होंने इस पद्धति को, इस मेथोडोलॉजी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा ये महाभोज में नहीं ठीक लगेगी, ये फिजिकल थिएटर और फोक थिएटर का मिलन। और बहुत सारे कलाकारों ने वो महाभोज छोड़ दिया। लेकिन कुछ नए कलाकारों को लेकर के बलवंत ठाकुर ने यही मेथोडोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए एक शानदार प्रस्तुति की, महाभोज। और मैंने तो इनके महाभोज मैंने इनका देखा नहीं, मनोहर सिंह का देखा था, लेकिन इनका जो मैंने नाटक देखे हैं वो बाबा जित्तो है, हिमाचल की कहानी है और घुमाई है। लेकिन मैं बलवंत ठाकुर से ये जानना चाहूंगा कि ये ईडियम जो फिजिकल थिएटर का ईडियम है, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये नौसन वगैरह ने शुरू किया था बहुत पहले, लेकिन भारत में ये फिजिकल थिएटर को लाने वाले बलवंत ठाकुर कैसे हैं, कहां से इन्होंने उठाया और इस ईडियम को कहां तक ये अपने नाटकों में प्रस्तुत करते रहेंगे, यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। बलवंत ठाकुर जी। सर, इट्स अ ग्रेट ऑनर बलवंत जी, यू आर ऑन स्क्रीन एंड जोशी जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, जो फिजिकल थिएटर को आपने शुरुआत की और उसको किस तरह से ब्लेंड किया। जो जम्मू का कल्चर है, जम्मू का डोगरी कल्चर है, जम्मू की मिट्टी की खुशबू जो आप कहते हैं जिसको, उसको किस तरह से ब्लेंड किया। और उसके साथ साथ बलवंत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी में आपको क्या मुश्किलें आई करने के लिए, बिकॉज हमारे लिए दैट विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स एंड अदर्स, दैट हाउ ए हार्ड वर्क of a person, a discipline of a person, and his brain and his zeal to do something, to be on the top
ऑलवेज। ये किस तरह से एक्वायर किया है बलवंत जी? आप अपनी बात शुरू करेंगे, अपने तरह से बात करेंगे, और बीच में एंड में हम कुछ जो पार्टिसिपेंट्स अगर बोलना चाहेंगे उनको इनवाइट करेंगे, नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जिसका विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन द रिप्लाईज फ्रॉम यू टू मेक इट टू वे प्रोसेस, so that we have a communication network with the audience, direct communication network with the audience. Thank you, Balwant ji. Now it's your turn. Unmute करें बलवंत जी. Unmute. Yeah. Am I audible? Yeah. Yes, yes. Okay. Thank you. Yes. सबसे पहले शिमला यूनिवर्सिटी का उनके प्रो चांसलर and vice chancellor, if I mix the names, kindly forgive me, Professor Ramesh and Professor Ramesh Chauhan. Is it the same? Yeah. और SN जोशी साहब का सामने होना is a blessing. इनको सामने देख के it's an inspiration. He is the one जिसने who identified me way back in 1988, and till date I'm continuing with my endeavors, and I never look back. And he's the one who's been encouraging. I met him later also, I think on one two occasions, but wherever I've met him, he's been speaking very high. That speaks of a great person. Because he's been very sportive. I've never seen, because I've worked with government. I've done a lot of projects with government within India and outside India. Unless until you need a person sitting up there in the bureaucracy, in the administration, who understands a creative person. And this was perhaps the only project which I did in entire my career, where I got the complete creative liberty. He never intervened. To this extent, Joshiji will remember that there was a lot upper Himachal and lower Himachal kind of thing, because Himachal is an integration of so many sub-regions. So carrying one-line story is very difficult. And people have been blaming while I structured the entire thing. And we had a trial show. And there were few scholars also who came to see that. And they said, yeah, it's more dominated by the lower Himachal. And you need to look for more few things of upper Himachal as well. That has been a huge challenge, creating something based on the history. And there was no Himachal. Let's be very clear on that. It's an integration of small regions, and then people like SN Joshi, who made it into one entity. And that effort of creating Himachal ki kahani was, I think, really praiseworthy. I wish that should have been continuing. And in majority of the nations, when you go to Paris, you will find a Paris show. You go to Rome, you will find a Rome show. Every evening there's in Rome, there's a Rome show projecting the entire cultural history and the background of that place. I wish such a thing happens at say at Ridge every evening, and people come to see the entire Himachal's culture strength. I don't know how that idea works with the government, but such a kind of thing has to be there. You go anywhere on this earth, barring India, you will find the first thrust of the government is more on promoting culture, promoting creative things. But I'll come to Joshi ji's question. In fact, जो last discussion मेरा language and culture department के लिए हुआ था, उसमें भी he raised the similar question, how this idea came to my mind to use actors body, the entire resources of the actors. मैं उसमें भी बता चुका हूँ. Fact ये है कि if we go back to the history of India, if you go back to the history of Indian theatre, for that matter, see, there have been only three major traditions. You have Greek theatre, and you had this Sanskrit theatre, and you had Roman theatre. If you go back to the history of all three theatres of the world, you will find they were too physical.
Because see, we all believe in one thing: the theater is not just based on actors, spoken resources, expressions and all. That's what this West theater is more wordy. आप देखेंगे जितने भी वेस्ट के नाटक हैं और वेस्ट का थिएटर का ट्रेडिशन है, वो स्पोकन वर्ड ओरिएंटेड, कन्वर्सेशन ओरिएंटेड है। जबकि हिंदुस्तान का जो संस्कृत थिएटर था वो एक टोटल थिएटर है। जब हम टोटल थिएटर की बात करते हैं तो जितनी भी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस दुनिया में हैं, जितने भी बने हैं, वो स्कल्पटिंग में है, पेंटिंग में है, म्यूजिक में है, डांस में है, वो एक्टिंग में है, ये सबका जब हम लोग, मेरा ये कोशिश था कि इन सबका समावेश किया जाए, इन सब चीजों को यूटिलाइज किया जाए और सबको इकट्ठा करके एक ऐसी फार्म तो पहले थी इंस्पिरेशन। मुझे नहीं लगता कि सडनली आदमी आप कहेगी मुझे रात को एक सपना आया और मुझे सपने में देखा कि ये करना चाहिए और अगले दिन मैंने काम शुरू कर दिया। यू गेट इंस्पिरेशन हियर देयर, आप छोटी छोटी चीजों से इंस्पायर होते हो। एज ए चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, अपने गांव में रहता था, तो मैं आई कम फ्रॉम ए विलेज। माता वैष्णो देवी का नाम सुना होगा एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी नोज द हिल्स ऑफ माता वैष्णो देवी। आई कम फ्रॉम द हिल्स ऑफ माता वैष्णो देवी, and back of the hills of we have still people believe that area is more a living museum of performing arts. हमारे यहाँ जो कदरें हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, एज ए चाइल्ड मैंने देखता था हर चीज में गाना। वो पैदा हो रहा है तो गा रहा है, वो काम कर रहा है तो गा रहा है, यहाँ तक कि किसी कोई मर जाता है बेचारा तब भी गाना चल रहा है। वो जो एक चाइल्डहुड मेरे दिमाग में वो चीजें थी जो एज ए चाइल्ड मैंने देखा था। मैंने लय और ताल को बिल्कुल सारे लोगों को, मेरे गांव में एक और ट्रेडिशन जो मैंने बड़ा जिससे मैं प्रभावित होता था, कोई भी व्यक्ति अकेला काम नहीं करता था। वहाँ डोगरी भाषा में उसको कमेर बोलते हैं। जैसे मान लो एक गांव में 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से एक आदमी का नॉमिनेशन होएगा, वो कहेगा कि आज का काम जो है इसके यहाँ होगा, तो सारे के सारे लोग उसके यहाँ उसके खेत में काम करेंगे। और जब वो खेत में काम करते हैं, दिस इज लॉट ऑफ फन, दिस लॉट ऑफ फेस्टिविटी, दिस लॉट ऑफ कम्युनिटी सेलिब्रेशन, दैट बिकम्स अ टोटल सेलिब्रेशन। लोग गाते गाते काम करते हैं। हमारे यहाँ धान लगता है, धान की खेती होती है, तो गाते गाते वो बोया जाता है, गाते गाते उठाया जाता है। फिर शाम को जब जल्दी खत्म हो जाता है तो उसके बाद फेस्टिविटी शुरू आती है। हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रेडिशंस जिनको बड़ा करीब से मैंने देखा, गीतड़ू, भाखा, सोइया, ये सारी ट्रेडिशंस को मैं देखता था। और मेरे फादर लैंड ओनर थे, बहुत काफी जमीन 20-22 गांव हमारे अपने थे, उनमें वो लोग काम करते थे। उनके बीच में मैं एज ए चाइल्ड घुसता था। कई बार डांट भी पिटती, तो क्या कर रहा है, कई बार पहचाना भी नहीं जाता। तो आपने देखा होगा खेतों में जब धान लगता तो मिट्टी 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 और वो कीचड़ वाला होता। कई बार मेरे को ना वो पानी डाल करके ढूंढते थे मेरे फादर की, मेरे वाला कहाँ है। वो बीच में उन बच्चों के बीच में 200 के बीच में भागता था, दौड़ता था। इनफैक्ट उस समय तो घर वालों ने बड़ा एलिनेट करने की कोशिश की, पर लेटर लाइफ आई फाउंड दैट दोस चाइल्डहुड इंप्रेशंस हैव बीन हाईली यूजफुल फॉर माय लाइफ। मुझे लगता है कि मेरे रूट्स के साथ जुड़ने का सिर्फ मैं एक सोफे में बैठ करके, एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके मैंने कला का या अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं किया। इनफैक्ट मैंने आई हैव लिव्ड थ्रू दैट थिंग, that has been I think a huge blessing for me and for my life. तो यो मेरे दिमाग में था। तो as a student आप तो you get attracted to theater just because okay yaar, you'll get a little popularity, you'll get a little favor, because see in class when teachers used to come, okay, we have a debating competition, who's going to go, so I used to be the first person, oh I'm going to go। तो यार तू कहानी भी लिखेगा, तू पोइट्री भी करेगा, तू डांस भी करेगा, ये क्या कर, हर चीज में आपको आता है नहीं आता है, लेकिन हर चीज में आगे निकलना, आगे करना, उससे थोड़ा सा थोड़ी चीजों का एक्सपोजर होता रहा। और मेरा भी उस तरह का इन्फ्लुएंस है। जो नाटक मैंने देखा वो मेन स्ट्रीम थिएटर का जो इन्फ्लुएंस है, जो नेशनल ऑफ ड्रामा से नाटक हो रहे हैं, कहीं और से हो रहे हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। इंडियन कंटेम्परेरी इंडियन थिएटर इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न थिएटर, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल के बाद के समय का जो थिएटर है वो टोटली अपने थिएटर को उन्होंने they have been very like hostile about Indian traditions and other things. They never encouraged, in fact, ये अपने लेवल पे ही कुछ फोक ट्रेडिशंस जिंदा रही और बची। बाकी जितना थिएटर आप देखते हैं वो जब साथ में जब अपने और टेक्नोलॉजी को लेकर के पहुंचे, एग्रीकल्चर में और चीजों में, लाइफस्टाइल को लेकर के, तो उन्होंने साथ साथ में हमारे यहाँ थिएटर भी लाया। गेटी इज अ लिविंग, मुझे लगता है कि शिमला वाले लोगों को मैं कौन होता हूँ बताने वाला,
कि इससे बड़ा प्रमाण जो है मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई लिविंग मॉन्यूमेंट्स बचे हैं उन लोगों की लेगेसी के, जो आपके पास इस समय भी आप लोगों ने प्रिजर्व करके रखा हुआ. तो दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट द थिएटर व्हिच वी दे brought that had got nothing to do with Indian ethos. Let's be very frank. Thematically, both in content and form as well. So एक समय तक मैं ये करता रहा, जब एज ए कॉलेज स्टूडेंट, एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करता था, मैं लिखता भी खुद था, सब कुछ करता था, लेकिन इट वाज मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम थिएटर. Suddenly when I thought of taking up theater as a full-time profession, at that point of time, I was like given to understand that if at all I want to work, if at all I wish to contribute to the theater of Jammu, to the theater of the country, I need to have my own identity. मेरे अपने काम का अपनी एक पहचान होनी चाहिए, और आपकी अपनी पहचान आपकी ओरिजिनलिटी से बनती है. जब तक आप मौलिक नहीं है, देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जोशी जी इसमें मतलब इस चीज को मानेगा. इनफैक्ट एवरीबॉडी जो मेरे को इस समय सुन रहा है, आप इस चीज को मानेंगे कि दुनिया में बहुत कुछ बारो है. आइडियाज जो है बेसिकली ओरिजिनल आइडिया कहीं एक आध निकलता है, और एक दूसरे की इंस्पिरेशन से ये सारा आर्ट हो रहा है. ये बैंकरप्सी जो है, सोच की बैंकरप्सी, थॉट की बैंकरप्सी जो है पूरी दुनिया में है. मैं तो आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मैं लार्जली ट्रेवल्ड थिएटर डायरेक्टर हूँ. आई कंप्लीटेड 100 कंट्रीज वे बैक इन 2012. अब तो मैं वैसे ही विदेश मंत्रालय में काम करता हूँ, तो मेरे लिए आई एम ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर. तो मैं ट्रैवलिंग, मेरे को दिल्ली जाना और किसी और देश में जाने में कोई फर्क नहीं है. तो पिछले मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 2012 से काम कर रहा हूँ, और नाउ आई एम पोस्टेड आउटसाइड इंडिया एज कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया सिंस 2019. अभी तो मैं जोहानिसबर्ग शहर में हूँ, और स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर का डायरेक्टर. लेकिन आई हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड आई एम नाउ गोइंग टू गो टू पोर्ट लुई. और ये भी मैं खुशी की बात है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ. द बिगेस्ट इंडियन कल्चर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज इन पोर्ट लुई. सो आई एम गोइंग टू हेड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडियन कल्चर सेंटर in Mauritius, or maybe I think by the end of this month I'll be joining that as director, Indira Gandhi Indian Culture Center. वहाँ जा रहा हूँ, और वो अलग बात है. लेकिन मैं I'll come back to जोशी जी. वो जब अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान और कुछ हट के एक मौलिक काम करने की जो एक होती है ना, एक आग है, नहीं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा. Lot of suggestions came. Few people said you need to go back to your roots. और मेरे को रूट्स में जाने के लिए मुझे कोई अलग से स्टडी नहीं करनी थी. मैं उन चीजों को बड़ी करीबी से देख चुका था. बहुत क्लोज इनकाउंटर्स थे मेरी लाइफ के, हमारी ट्रेडिशंस को लेकर के, हमारे म्यूजिक को लेकर के, हमारे डांसेस को लेकर के. सो इन द ईयर 1986 I thought of creating a performance based on the folklore of Jammu. There is a very, very socially relevant story, बाबा जिसका जोशी जी ने जिक्र किया अभी, उस कहानी को मैंने लिया. In fact, there have been a tradition of narrative singer traveling from village to village and narrate that story. There's a around 600-year-old happening of Jammu. वो बहुत इंस्पायरिंग लगी मुझे. मैंने उसी ट्रेडिशन को, उसी चीज को लेकर के सोचा, और जब उसको एक as a storyteller, as a person who structures narrative, तो आप चाहते हैं कि आपका your work should not limit just to Dogri, just to Hindi, just to this. So you need to be more visual. You need to create more. So see, visual language is the universal language. मेरा नाटक अगर जर्मनी में खेला, और खेले बाद में मैं रशिया में जब खेलता था, या मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जब ट्रेवल करता था, या ऐसे मैं यूरोपियन देशों में गया, तो आई थिंक द कम्युनिकेशन, there were no language barriers, and the kind of theater which I created, and people now say the Balwant Thakur's theater. I don't mean that, because my idiom, I don't want to be known as a theater person who has created new idiom. It's not new idiom. I only took inspiration from my traditions, took inspiration from
from the Sanskrit, the classical theatre of India, from Natya Shastra. Of course, I added on to that. I added my own imagination. I added my own thought into it because I wanted to make my narrative more as a visual poetry. So I worked on certain things. I worked on certain sequences. I worked on certain. See, one more play I think which is not mentioned here and which couldn't travel for one reason or the other because it had a huge cast. I did breaks that Caucasian Chalk Circle, and उसको मैंने इतनी विजुअल लैंग्वेज में किया था कि आपको मालूम होगा कि Caucasian Chalk Circle में there is a narrator who sings and narrates and relate to that. मैंने वो सारा जो नरेटिव है Caucasian Chalk Circle का वो निकाल करके उसको एक कोरस में बदल के सारा विजुअल लैंग्वेज में लाया. And everybody was like stunned to see कि वो जो एक बात आप देखिए, आप जब बोलते हैं खाली शब्दों से किसी चीज का आप एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो डिस्क्रिप्शन इतना एक शब्द का एक उसकी लिमिटेशन है. बियॉन्ड दैट वो नहीं जा पाता. बट व्हेन यू क्रिएट दैट इनटू अ विजुअल एंड दैट टू अ पोएटिक विजुअल, स्टाइलाइज्ड तरीके से करते हैं जिसमें सिंबलिज्म का एलिमेंट भी रहता है, वो एक लार्जर और बहुत मतलब उसकी जो इट क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेजेस, वो कहीं पे भी पहुंच सकता है. मैं उदाहरण आपको एक देना चाहता हूँ, आप क्योंकि मेरी बात से तब जब तक रिलेट नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं. देयर इज अ प्ले व्हिच इज वेरी पॉपुलर. In fact, that is the only play which helped me taking theatre to international level. मैंने World Experimental Theatre Festival Russia खेला. I was the first theatre director from India. In fact, it was the first Indian entry in Frankfurt International Theatre Festival. The play is घुमाई. उसमें और तो कुछ है, लेकिन जब वो कहानी मेरे को बहुत, देखिए कहाँ से कहानियां आती हैं और कहाँ जाकर के चलती हैं. I was studying in my 10th class. तो क्या था कि जब मैं जाता था गांव अपने वापस स्कूल से, तो मेरी मदर जो है, हम दोनों उनके जो मेरी माँ के जो मायके हैं, हम वहां जाते थे. तो सब पहाड़ है, तो पहाड़ों में मैं साथ में चलता था. हम दोनों चल रहे हैं और पैदल चलना होता था. पहाड़ में चढ़ रहे हैं. तो मुझे प्यास बड़ी लगती है, जाहिर है पहाड़ है, पानी का कोई सोर्स नहीं है. तो मेरी माँ ने एक मेरे को कहानी सुनाई कि ये एक कहते हैं ओआख, हमारे यहाँ डोगरी में कहते हैं, यहाँ एक मतलब कहीं सुनी है, यहाँ कोई मतलब ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन कहते हैं, यहाँ कुछ ऐसा हुआ था इन पहाड़ों में. उसकी कहानी की ये 2 मिनट की कहानी क्या है, एक लड़की की शादी होती है और उसको वापस अपने ले जा रहे होते हैं पहाड़ों में, और वो रास्ते में पानी मांगती है कि मुझे प्यास लगी है. तो वो सब मजाक में ले जाते हैं और वो चलते चलते उसकी जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते जाते हैं, उसकी प्यास बढ़ती जाती है. पहाड़ चढ़ते जाते हैं, प्यास बढ़ती जाती है. ऑन टॉप जब पहुंचने वाले होते हैं, शी इज अबाउट टू डाई, लाइक वो मरने वाली हो जाती है. तो उसको वहां रुक के सब लोग पानी ढूंढने लगते हैं, कहीं पानी नहीं मिलता. तो इस बीच में चल रहा है, उसमें बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन एक आदमी उठ के खड़ा करता है, यार मैं लाऊंगा. कहार जो थे जिन्होंने उठाने वाले, उसमें जो बिल्कुल 4 होते हैं ना लोग, जो एक निकट वाला होता है, जो मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, वो थर्ड वाला जो था वो वाज वेरी क्लोज, और वो उसको ज्यादा इम्पैक्ट था उसके चीखने का, उसका बार बार रोने का, पानी, तो वो ज्यादा इफेक्टेड था. तो उसने ही वो सर कहता भाई मैं लाऊंगा पानी, तो सब मजाक बना रहे हैं. तो उसको और जरा ऑफेंडेड लगा, नहीं यार, तू जरा यहाँ बंदर नहीं पहुंच सकता पानी तक, तो तू कैसे पहुंचेगा. हाँ ये ऐसा है वैसा है. तो वो पहाड़ से नीचे पानी तो सोर्स नजर आता है उनको, लेकिन पहाड़ से पत्थर गिराते हैं तो देखते हैं नीचे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. कहते यहाँ इंसान नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, तू कैसे लाएगा. तो दूल्हे और उसकी बहस हो जाती है. दूल्हा कहता है नहीं तू लाएगा, कहता नहीं लाएगा. क्या लाया तो कहता तो लाड़ी तेरी, तो बीवी तेरी. एंड ही जंप्स. पहाड़ है, पहाड़ में स्ट्रगल है, एंड ही फाइनली फॉल्स इनटू दैट पॉन्ड. गिरता है उसमें, और गिरता है जब तो अरे यार गिर तो गया, पानी किस में ले जाएगा.
हाँ, तो ये इधर पत्तों का कुछ बनाता है, ये करता है, he tries 2-3 things and then finally he is not able to do. उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। देखिए मैंने ये कोशिश भी की, वो भी किया, ये सब कुछ म्यूजिकली किया है मैंने, तो फाइनली वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, he starts fighting with water. In that time when he's fighting with water and the splashes goes up, वो जब आते हैं तो उसको एक अपने कपड़ों से ऐसे टप 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 होता दिखता है पानी। देन आइडिया कम्स कि वो कपड़े उतार के उसमें भिगो के वो लेके ऐसे, ये आगे क्या हुआ वो मैं नहीं सुनाऊंगा। माई पॉइंट इज, जब ये नरेटिव इस तरह का है कहानी का, when the story is like this, coming down, falling into pond and then fighting with water, it's all musical, it's all poetic. आप बेयर स्टेज पे, एक स्टेज के ऊपर पानी कहां से लाओगे? आप एक स्टेज पे ऊपर कौन सा दृश्य दिखाओगे जिसमें पानी हवा में उड़ेगा? जब लोग सुनते हैं, विदेशों में क्यों पॉपुलर हुआ, everybody, how it's possible, and people say, hey, Mr. Thakur has done it on stage without using anything. हैं? सब कहते हैं how it can be. अगर वो शेक्सपियरियन थिएटर होता तो उन्हें बहुत बड़ा पॉन्ड क्रिएट करना था स्टेज के ऊपर, करोड़ों रुपया खर्च के, और उसके बीच में फिर बंदा आना था, पता नहीं किस कौन से जाकर के हाइड्रोलिक सिस्टम से पानी उड़ाना था। उनके और टेक्नोलॉजी वाले लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन जब सबने सुना कि एक बेयर स्टेज पे ये इतनी सारी नैरेटिव सुना रहे हैं हम लोग, ये सब उसने करके दिखाया। यू कैन सी योरसेल्फ, द मैन इज फॉलिंग डाउन and the man is fighting with water and water is going up, and it's a bare stage, there's no water on stage, and it's all physical movement, it's all the actions of the actors. And people keep asking me from where you got this idea, how it came to you. I think when you have a thirst for doing something differently, when you have a dying thirst, you have the imagination in your mind and you keep experimenting. Can you believe no play of mine has been possible without putting, say, 1 to 2 years of only rehearsals, experimenting with actors, creating some scene. And there has been instances that I've been taking 30 to 40 days just to create one image. You need very, very dedicated team who believes in you, because it's too frustrating for actors to stand like this. When I create structure, when I ask them to do movements and all, I've been very fortunate that I got people who believe that this person is going to create something out of world. And it's really going to add on to the contemporary Indian theater. This is how it came into my mind, and I'm not done. It's just a beginning for me. I'm still in the process of finding some very, very interesting stories. And one thing I would like to tell all listeners, see, never look for something which is already international. Look for something very local. Your local will become international. मेरे जो गाँव की कहानी है उस दुल्हन की, वो पूरी दुनिया में, मैंने स्विट्जरलैंड में उसका प्रेजेंटेशन एक विमेन एसोसिएशन के लिए किया, वर्ल्ड विमेन, दैट स्पीक्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। वो अपना इंटरप्रिटेशन बना। वो बात की कहानी है कि जब वो लड़की वो पानी ले आता है, वो पी लेती है, उठती है, तो दूल्हा पकड़ के उसको ले जाना लगता है, चलो घर, अब तो सब हो गया, तो शी रिफ्यूजेस टू गो। देन कम्स कि 600 साल पहले एक 16 साल की लड़की इतना डेयर कर सकती है कि अपने पति के सामने अपने आप को विडो डिक्लेयर करती है। वो एक अलग से इंटरप्रिटेशन मिला। एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्पॉन्सर किया। पानी की बात करती है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो पानी के लिए होगी। इट स्पीक्स, यू हैव टू कम आउट विद यूनिवर्सल थीम्स, यूनिवर्सल रेलेवेंस। आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल वो एक आज का अखबार देख करके अगले दिन उस इंसिडेंट को लेकर के नाटक बनाते हैं, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक थिएटर, बट दैट थिएटर लिव्स with that whatever happening, critical happening, or whatever happens in your town, and you create a performance out of that. That happens, that dies with that. But there are certain universal, certain themes which are relevant everywhere. मैं आपको सेंट पीटर्सबर्ग की बात बताता हूँ।
ये नाटक चल रहा है जोशी जी, सुनिए, बड़ी मजेदार बात है। नाटक चल रहा है, नाटक के बीच में हमने म्यूजिकली बड़ा किया। इनफैक्ट मेरे को ये होता कि इस पे मैंने बात करनी है तो मैं साथ में कुछ म्यूजिक चलाता, उसका आप सुनते म्यूजिक का क्या मैंने चमत्कार किया है। वो त्रे 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 पे करा हुआ कुछ तो चल रहा था। We'll give you an opportunity again. Sure. I wanted to add on. जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, आप सोच रहे हो कैसे यार पानी हवा में कैसा उड़ता दिखाया है साहब। तो वो कुछ नहीं, कोई प्रॉप्स यूज नहीं किया। इट्स ऑल ह्यूमन बॉडी एंड जेस्चर्स एंड व्हाटएवर द म्यूजिक। वहां म्यूजिक बज रहा है, त्रे 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 हो रहा है और सब कुछ कर रहा है। कैन यू बिलीव वहां के जो मेयर बहुत इज अ बिग शॉट। ये हमारे यहाँ का मेयर नहीं होता, हमारे इंडिया का मेयर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग मीन्स वो तो बिग शॉट है, वो बहुत बड़ी हस्ती है। ही वाज द चीफ गेस्ट देयर। कैन यू बिलीव? वो अपने पोते को लाया था साथ में, यंग चाइल्ड। हालांकि यंग बच्चों को अलाउड नहीं है, वो सिंस वो था तो चलो उसको लाना चाहता था। एंड ही देन उन्होंने एक वो दिया था अंडरटेकिंग कि नहीं ये बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, ये मतलब एक अडल्ट ऑडियंस की तरह आराम से देखेगा। कैन यू बिलीव? वो नाटक चल रहा है और बच्चा वहां से भागा, उसके पास में एक वाटर की पानी की बोतल उसके हाथ में जो घर से लेके आया था, वो दौड़ के स्टेज पे जाकर के ही इज ऑफरिंग दैट वाटर। हाँ, वो दुल्हन को जाके पानी पिला रहा है। जब वो पानी पिलाने लगा तो पूरी ऑडियंस खड़ी होकर क्लैप करना शुरू कर। आइडिया इज कि कितना संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन है इस तरह की विजुअल लैंग्वेज का, इस तरह के थिएटर का, वो इतना इफेक्टिव है कि एक रशियन ऑडियंस जिनको हिंदी नहीं आती, जिनको अंग्रेजी नहीं आती, एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट, उससे खुश होकर के तो उस दिन शाम को तो फिर मेरे कलाकारों का तो बड़ी वाहवाही हुई और उसने अपने पैलेस में बुला करके सबको डिनर और कुछ गिफ्ट्स वगैरह और ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये इस तरह की चीजें जो हैं, जब मुझे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो दिस दैट गिव्स यू ओके, यू आर इन ए राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन, यू नीड टू लाइक डू मोर एंड मोर। इस तरह की कुछ और चीजें क्रिएट करें जो एक क्लासिक्स बन जाए, ऐसे नाटक। और वो ये नाटक जो है, चाहे बाबा चित्तो है, मेरा सुनो कहानी है, महाभोज है, ये नाटक जिंदा है अभी भी। दे आर द रनिंग प्लेस। थिएटर में सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि पीपल क्रिएट मैजिक, पीपल क्रिएट अल्टीमेट परफॉर्मेंसेस, बट दैट परफॉर्मेंस goes with the last rehearsal. Last rehearsal is the final show. उसके बाद ना एक्टर्स वो इकट्ठे होते हैं, ना कुछ होता, और नाटक चलता है। नाटक का हमारे देश में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तभी मुझे लगता है कि हमारे देश में थिएटर एक ट्रेडिशन नहीं बन पाया। कंटेम्परेरी इंडियन थिएटर या मॉडर्न इंडियन थिएटर, वट एवर यू से, ये लड़खड़ है ही नहीं। मतलब वी स्टैंड नो वे। जो वर्ल्ड में जिस तरह का थिएटर हो रहा है, या जिस तरह थिएटर होता है, या जिस तरह का ऑडियंस है, जिस तरह का उसका इकोनॉमिक्स है, मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, दैट इज नोवेयर हियर। शो किया है, 4 लोग इकट्ठे होंगे, हो सकता है वो पहले शो के बाद ही लड़ पड़े, और बढ़िया एक काम करने के बाद वो काम आगे ना चल पाए। और सरकार इतनी सैडिस्टिक है, देयर इज नो प्रायोरिटी फॉर कल्चर इन माय कंट्री, देयर बीन लिटिल प्रायोरिटी। और जो लोग आप आइडेंटिफाई करते हैं, अमेरिका में क्या सिस्टम है कि आपको लगता है कि देयर इज अ ब्रिलियंट गाय जो एग्रीकल्चर में है, वो टेक्नोलॉजी में है, किसी में भी है, दे नेवर लुक फॉर द डिग्रीज, दे नेवर लुक फॉर द मेरिट, दे ओनली लुक फॉर द लाइक प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन। वो चाहे लिटरेचर में है, पोइट्री में, उसको एकदम से इतना ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं, तो वो एक द पर्सन बिकम्स द इंस्टीट्यूशन। That part is totally missing in our country. अगर कोई और बात आप करना है, क्योंकि जोशी जी ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि why I took over as like physical theater, क्यों, क्या वो मेरी, मतलब मैं समझ ये करूंगा कि मैं I wanted to have my own kind of theater, I wanted to have my own identity in theater, and I found कि identity मेरी जो है उन्हीं चीजों में बनेगी जिसमें मैं ज्यादा इमेजिनेटिव हो पाऊं, ज्यादा लिबर्टी ले पाऊं, वन थिंग। एंड सेकेंड, जो टोटली रूटेड हो मेरे सॉइल में, मेरे कल्चर में, मेरे अपने इतिहास में। आज मेरे नाटक इंटरनेशनल बने हैं, लेकिन वो उन्हीं गांव की कहानियां हैं। तो मैं गांव में करता हूँ, वो भी उसी तरह रिलेट करते हैं, और जब इंटरनेशनली करते हैं तो एक यूनिवर्सली और एस्पेक्ट्स को लेकर के रिलेट करते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वर्क। बलवंत जी, जोशी जी के मन में एक और सवाल आ रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। Sure. All right. My next question is,
that you have worked a lot in Bhand Pather. I'm coming to the folk theatre. Bhand Pather is folk theatre of Kashmir. And you have worked a lot on Bhand Pather. Now, when I compare it with Karyala of Himachal Pradesh, I find that both have the same similarities. That is, in Karyala, we have Sahib ka Swang. In Bhand Pather, we have Angrez Pather. In Karyala, we have Sadhu ka Swang. In Bhand Pather, we have Gosai Pather. Or Gosai Pather. Gosai Pather. So, what I want is that it has been because Bhand Pather has been recognized because of the promotion given by Sangeet Natak Academy. Now, as a member of Sangeet Natak Academy, because you are a member of Sangeet Natak Academy, can you talk there about the revival of Karyala in Himachal Pradesh? Or are you leaving it to the representative? No, not at all. सर मेरे आप गुरु हैं. आपने कहा तो मैं अभी आज ही के मतलब शिमला यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से और मेरे दोस्त अश्विनी जी इसके विटनेस हैं. Done, sir. I just need a that's a good news from your side. Thank you. Thank you. Done. I still continue to be the member of National Academy, and only thing that whosoever is the representative from Himachal side, because every state has one representative on the General Council of Sangeet Natak Academy, that person should also at least say yes. It's good. It requires to be preserved. I would just like to introduce Bhand Pather and would like to share one very important thing about Bhand Pather. Because Bhand Pather is a community supported theatre. That unfortunately Karyala is not. For that matter, even Nakal of Punjab is not, like the Swang of Haryana is not. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं सुनाना चाहता हूँ. भांड पाथर जो लोग बिल्कुल पहली बार नाम सुन रहे हैं, भांड इज अ एक्टर एंड पाथर इज अ थिएटर, एक्टर्स थिएटर. इट्स अ thousands years, nobody can name it, but certainly with the Kashmir origin, this theatre is there, and it's a very, very old theatre tradition of Kashmir, and it's a community theatre. Community theatre में एक बहुत बड़ा belief है, और उन लोगों का अब भी है. लोग इतने मॉडर्न हो गए, इतनी तरक्की कर ली, कश्मीर में कहीं पे भी कर ली, नई जनरेशन करती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उनकी रगों में संस्कृति और संस्कारों का इतना इम्पैक्ट होता है कि वो उन चीजों में कुछ पुराने बिलीफ हैं, उनमें बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करेंगे. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड भांड दुहाई. सुना होगा आपने जोशी साहब, भांड दुहाई. ये लोगों का कश्मीर में एक बिलीफ है कि अगर कोई एक गांव है और उस गांव में कोई विपदा पड़ती है, मान लीजिए बारिश कई महीनों से नहीं हो रही, या मवेशियों को कोई ऐसी बीमारी लग गई है, या मतलब जैसे हिमाचल और कश्मीर के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल उस तरह का जैसे सेब की फसल में कीड़ा हो रहा है, जब कुछ ऐसा हो रहा है, जब कुछ ऐसा हो रहा है, जब लोगों को बड़ी विपदा लगती है और बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल लगता है उनको, तो देन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ बिलीफ इन कश्मीर दैट यू इनवाइट अ भांड ग्रुप, आस्क देम टू परफॉर्म, और पूरा गांव आएगा, कोई बच्चा गांव का नहीं बैठता. ये एक बहुत बड़ा बिलीफ है कि वो एक सेक्रेट है उनके लिए. वो आना है, सपने देखना है उनका थिएटर, और थिएटर देखने के बाद जब सब खत्म होगा तब भांटों को कहा जाए कि भांट दुहाई देंगे. उस गांव की वेलफेयर के लिए, गांव के लोगों के वेलफेयर के लिए, या कोई स्पेसिफिक जो जिस डिमांड पे वो भाट के लोग आए हैं, तो भांट उस समय दुहाई देता है. और ऐसे हाथ करके वो खड़े होते हैं और सारे लोग खड़े होकर देते हैं. कैन यू बिलीव? आई एम ए विटनेस टू दैट, सर. आई एम ए विटनेस टू दैट बिकॉज सिंस आई पहले तो मैं सेक्रेटरी था, सचिव था कला संस्कृति भाषा का जम्मू कश्मीर में, तब मैं 9 साल देखता रहा. उसके बाद मैं 3 साल ये प्रोजेक्ट किया संगीत नाटक अकेडमी का, और सारे परफॉर्मेंसेस में खुद करवाता था. आई एम ए विटनेस टू दैट. बारिश मांगी जा रही है, मैं भी खड़ा हूँ, हालांकि मैं साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया का आदमी हूँ, मैं ये पढ़ाने नहीं आया दुनिया को, लेकिन आई एम ए विटनेस. मैंने अपनी आंखों से देखा है जब वो दुहाई दे रहे तो बार और गड़गड़ और बरसात शुरू, और मैं खुद उस पानी में भीग चुका हूँ. बलवंत जी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और उससे क्या है कि उस चीज ने उस चीज को जिंदा रखा है.
भांड पत्थर की आज भी डिमांड है, आज भी लोगों के यहाँ कोई विपदा आती है तो भांड का ग्रुप आता है। और 1000 से ज्यादा कलाकार इस समय भी टोटली डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं कश्मीर में भांड पत्थर के। कम से कम 50 से ज्यादा ग्रुप्स हैं। हालांकि भारत सरकार भी उसको सपोर्ट करती है, लोकल गवर्नमेंट भी थोड़ा नेग्लिजिबल करती है, लेकिन ये ट्रेडिशन है। लेकिन करियाला मैंने खुद देखा है, बहुत पावरफुल थिएटर है। मैं आपको लाइव भी देखा है मैंने, और बहुत सारे वीडियोस जिन दिनों आप वहाँ डायरेक्टर थे लैंग्वेज एंड कल्चर के जोशी जी, उन दिनों आपकी बहुत अच्छी कलेक्शन थी करियाला पे। वो मैं सारी वहां देख चुका हूँ, किस तरह से वो बजाते बजाते एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, फिर करते हैं, फिर लोगों को इकट्ठा करते हैं, दे कीप वेटिंग फॉर देम टिल जब तक ज्यादा ऑडियंस ना हो। बहुत सारी चीजें रेलिवेंट हैं और वी विल ट्राई। करियाला मुझे ये लगता है कि इस नॉट हिमाचल को कला संस्कृति को जिस दिन हम लिमिट कर देते हैं ना कि इट बिलोंग्स टू हिमाचल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हिमाचलीज टू प्रोटेक्ट, वो बहुत गलत है। मुझे लगता है इट्स अ लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ टू preserve these traditions. Very And good. this is what people believe world over. Unfortunately, India, we don't believe in this. We need to believe in this theory that art and culture, whatever is in the tradition, is a tradition of the mankind. It's a tradition of human history. I think it's most unfortunate that we have not been able to preserve and promote them. But we need to make all out efforts to preserve them. I'll see to it that similar kind of project is implemented in Himachal as well. गुड। बलवंत जी, थोड़ा सा अब सिलसिला आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लोग हैं इसमें, और मैं भी इस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। कैन यू जस्ट टेल अस ब्रीफली हाउ दिस थिएटर is a medium of communication for the public, taking the issues to the public? जैसे आपने पानी का इशू रेज किया, वुमेन के इश्यूज हैं, कितना इम्पैक्ट होता है, और इम्पैक्ट इन द प्रेजेंट एज, मॉडर्न एज, द पीपल आर going from their away from their traditions, but these are the historic things, how powerful they are still, and how powerful it further could be made in the future. Thank you, Ashmi ji. It's a very I love this question because I have done a lot of theater which is called motivational theater. I did a project called Theater for Mass Motivation. It was a UNESCO supported project in Jammu and Kashmir, and I'm very fortunate that they wanted to do something on the Indo-Pak border, and some part is only a national, that international border, and the rest is line of actual control. As you know, since you belong to the place, so you know it, right? People may not be able to relate what is actual line of control and what is the international border. But I was given a project supported by UNESCO to do something culturally, and first thing which I did, how I went into that kind of motivational theater. You need to go. I was asked to survey Jammu Kashmir from Nagari Parole to Kargil. Nagari Parole is a place which is in Kathua district from Punjab. From Punjab border to the end of the area which touches that where we had this Kargil conflict and all, that up to that border. इस पूरे border पे 500 shows करने का मैंने एक प्रोजेक्ट किया, एंड थीम जो था वो एरिया स्पेसिफिक होगा। किस एरिया में कौन सा ज्यादा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेकर के थिएटर होगा। थिएटर फॉर मैस मोटिवेशन, पहली चीज मैं उस मोटिवेशन पे आऊंगा। I believe and I can prove that of all the communication, जितने भी हमारे मतलब चाहे वो पहले ट्रेडिशन में नरेटिव होता था, नरेटर्स होते थे गांव में, आपने भी देखा होगा हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कोई ट्रेडिशंस का कोई फर्क नहीं है। पीपल यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड दे यूज्ड टू नरेट एज ओल्ड स्टोरीज। That was the only, I think, communication medium we had. Then print medium aaya, then we had newspapers and other things to communicate, to disseminate, and then of course radio and television and the film.
These are the mediums of communication. But of all these mediums, theater is the most effective medium of communication. First, एक चीज बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों है कि थिएटर सबसे इफेक्टिव है. पहली चीज ये है कि थिएटर का जो इंगेजमेंट है, इट्स द होलसम engagement. It engages you intellectually, emotionally, spiritually. Other mediums are alien to you. Theater is the only medium where audience identifies in your performance. ये जो एक theater की effectivity, I tell you, see, I have done films also, I have done television programs also. Despite doing so much, people don't remember my work. People hardly, oh, we saw your serial, okay, these many episodes, yeah, I don't remember. But wherever I have gone, and even today when I happen to visit any village, they say, hey Balwant ji, आप यहाँ पे 30 साल पहले आए थे, and you did that play. मैं दूर क्या जाना, आज भी लोग शिमला में 1987 में मैंने बाबा जित्तो किया था. मैं जो लोग जिनके साथ मेरा संपर्क है अभी भी मेरे को कॉल करके बताते हैं, बलवंत जी आपके नाटक में फसल जो थी ना, ऐसे लग गया था कि ऐसे कणक उग के आ गई है यार, क्या वो इस तरह का कैसे किया था आपने, वो उसमें जो संगीत और वो जो मूवमेंट था उनका, वो जो उसके बेटों का. लेकिन आप क्या समझते कि 30 साल पहले की जो फिल्म का कोई एक सीन और डायलॉग और मूवमेंट, अनलेस अंटिल दैट इज शोले और समथिंग सम अदर फिल्म, आप कैसे वो एक इम्पैक्ट जो एंगेजमेंट है, ये किसी और मीडियम में नहीं है. आपकी ऑडियंस चलते चलते नाटक में अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, वो फील करती है कि मेरी कहानी है, मेरा एक नाटक है. वो मैं एक लड़की का, अभी नई सरकार में आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, बहुत पहले यूनिसेफ ने मुझे काम दिया था विमेन एजुकेशन को लेकर के. आई क्रिएटेड ए प्ले कॉल्ड सुनो ये कहानी. अश्विनी शायद आपने देखा होगा, शायद उन दिनों आते आते. एक लड़की की कहानी है जिसको पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो उसकी जल्दी शादी करवाते हैं. मैं आपको एक सुध महादेव जगह है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, इसे टूरिस्ट स्पॉट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वहाँ एक सुध महादेव मेला होता है, उस मेले में मैंने परफॉर्मेंस किया और पिन ड्रॉप साइलेंस में कोई 10,000 लोगों के बीच में मैं नाटक कर रहा था. कॉम्प्लीमेंट सुनिए आप, इफेक्टिविटी सुनिए. मैं नाटक कर रहा था, उस नाटक में एक लड़की स्ट्रगल करती है, उसकी जल्दी शादी करवा रहे हैं और शादी नहीं करना चाहती, पहले पढ़ना चाहती थी, वहां से बचती है, शादी हो रही है, करते 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 फाइनली स्ट्रगल करती है और वो जीतती है. वो जीत के वो जब नाटक खत्म, जैसे ही नाटक खत्म होता है, एक लड़की आती है बिल्कुल चूड़ा सा पहना हुआ है, नाटक खत्म हो गया और लड़की मेरे पास आती है, कहते मोया, ऐसे मेरे को गाली दे के, कुत्थे था तू कहाँ मरा हुआ था. मैंने कहा क्या हुआ, कहता है तू 15 दिन पहले आता, मैं ब्याह नहीं करती. हाँ, कहता 15 दिन पहले आया होता यहाँ पे और ये मैंने देखा होता, मैं शादी नहीं करती. आप देखिए कितना इंपावर करते हैं आप. एंड शी सेड इट बिफोर. वो अपने उसका हस्बैंड और सास ससुर और साथ में थे, वो मेले में आए हुए थे, उनके सामने बोली और ऐसे करके ऐसे करके कहती तुम सारा 15 दिन पहले आया होता ना. हाँ, और वो गाली दे करके डोगरी में पूरा. तो दिस इज द इफेक्टिविटी. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. जब ये यूनिसेफ का मैं प्रोजेक्ट कर रहा था जगह जगह, तो ये बॉर्डर बेल्ट जो है हमारा पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ जो इलाका है, यहाँ क्या है कि ज्यादा मैक्सिमम लोग बहुत तंग हैं शराब से. और शराब का इतना ज्यादा इम्पैक्ट, इतना ज्यादा है कि मतलब जो लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मजदूरी करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं शहर में. तो शहर से लास्ट एक बस जाती है इधर शामा चक के इलाके में. शाम आप रिलेट कर सकते हैं, जो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल बॉर्डर है, पाकिस्तान है दूसरी तरफ, इस तरफ ही है. तो जाते हैं और फिर ये मैंने उसको स्टडी करने के लिए क्या किया, पहले मैं उस बस में बैठा, रात को मैंने बस में सफर किया. उस समय जब ये सब लोग मतलब कोई रेडी चलाता है, कोई किसी दुकान में काम करता है, और जैसे ही खत्म हुआ उसमें, उसके बाद डट के पीनी है, इतनी पीनी है कि मतलब लोग भी और कंडक्टर भी धक्के दे करके, वो जो बस के अंदर अगर 60 सीट कैपेसिटी है तो 100-125 लोग उसमें बैठ चढ़ाए होते हैं, ऐसे मतलब उनको गूंथ गूंथ के डाला होता है बीच में. और वो गांव पहुंचते हैं कोई 11 बजे रात की. जब 11 बजे पहुंचते हैं, सोया हुआ गांव फिर जागता है और कुत्ते भौंकते हैं, लोग आ रहे हैं और महिलाएं
अपने घर से लैंप लेके, टॉर्च लेकर के अपने अपने हस्बैंड को ढूंढने आती हैं। कोई उधर ही गिर जाता है, कोई उधर गिर जाता है। इससे इंस्पायर होकर के मैंने एक नाटक लिखा, उसका नाम रखा लास्ट बस। और लास्ट बस में भी इसी तरह की मैंने एक कहानी नरेट करने की कोशिश की। और ये जो बेल्ट है, खासतौर पे आरएसपुरा का बेल्ट था, अखनूर का बेल्ट था, ये जो इलाके हैं हमारे बिल्कुल पाकिस्तान से सटे हुए, इन गाँवों में मैं उसके शोज करने शुरू किए। एक जगह मैं कर रहा था, वहां चलते चलते नाटक में हमने जो माइक वाइक लगाए होते थे ओपन में, वो आई चलते नाटक में बंद करी तो क्या था कि महिलाएं तो देख रही थी, मर्द जो था, हमारे गांव में एक थोड़ा सा रिवाज है गांव में कि एक परना या टावल कोई व्यक्ति होगा मर्द, वो कंधे पे जरूर डालना होता है। जैसे आपने भी हमारे यहाँ कोई गले बंद रखा है या कुछ, तो वह एक काम करने वाला व्यक्ति है, उसका निशानी है कि एक कपड़ा को 2-3 मीटर का कंधे पे रखा होता है या टावल रखा होता है। हमेशा हर गांव वाले जब सर बांध लेगा, काम करना है नहीं तो कंधे पे रखेगा, वो बैठा। जैसे वो चल रहा था नाटक, तो जितने मर्द देख रहे थे वो सब उठा करके मुंह लपेटना शुरू कर दिया और ऐसे 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 करने लगे, मुंह छुपाने, क्योंकि दे वर आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ, दे वर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स इन दैट परफॉर्मेंस। उनको लग रहा था हम नंगे हो रहे हैं। किस तरह बीवी को पीटते हैं, वो कहानी ऐसी मैंने बड़ी इंटरेस्टिंगली स्ट्रक्चर करी थी कि बंदा पहुंचता है और सबको पूछता है, यार मेरा घर बताओ भाई कहाँ है, पहले अपना ही घर नहीं ढूंढ पा रहा है, फिर वो चीखता है, फिर घर जैसे तैसे पहुंचता है, जब पहुंचता है तो देखता है घर, बीवी को कहता है खाना खिलाओ, कहती है खाना कहाँ से खिलाऊंगी मैं, सॉरी सॉरी ये इंटरप्ट, खाना कहाँ से खिला पाऊंगी मैं, मतलब यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो ये जो मतलब शराबी सारा अपनी सारी कमाई को खा पी जाते हैं, वो उस हमने बच्चे भूखे हैं, घर में राशन नहीं है, और फिर वो कोई आदमी उसको पूछता है कि तू कितना कमाता है, जितना कमाता है उतना ही खा जाता है। एनीवे ये सारी चीजें वो रिलेट कर रहे थे। तो जब मुंह छुपाने लगे तो एक बड़ी एल्डरली औरत हाथ में डंडा उठाया और आकर के हमारा माइक छीना और पकड़ के उनको हमारी भाषा में कहने, ओए देखो, वो देखने लगी, कहता इनको, और कहता मुंह मत छुपाओ, उनको कहने लगी ये आप हैं, ये ड्रामा नहीं है, ये आप हैं। तो मतलब इतना ज्यादा एक अपने आप में ही एक लड़ाई उधर शुरू हो जाती है और हिम्मत बनती है लोगों को। मैं अब भी कहता हूं, खास तौर पे आपको विलिश फोक तक पहुंचना है तो यूज थिएटर एज ए पावरफुल मीडियम, बिकॉज ये सिर्फ आपको खाली एजुकेट नहीं करता है, ये आपको आंदोलित करता है उस लेवल पे कि आप उठ के तैयार हो जाते हैं। और मेरा एक एग्जांपल नहीं है, मैं 20 ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूँ जब ऑडियंस जो है आपके चलते नाटक में उठ के आ गई है, वो प्लेज करती है। औरत जो है वो आकर के कहती है कि मेरी उम्र इन लोगों को लग जाए, ये जो नाटक करने वाले हैं, कम से कम इन्होंने तो आंखें खोली। बलवंत जी, एक अब कोविड टाइम चला हुआ है और आप भी उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कोविड टाइम में किस तरह से थिएटर को लोगों के पास ले जाया जाए। तो ऐसे आपने कुछ टूल्स यूज किए हैं ताकि थिएटर भी खत्म ना हो और लोगों को जो जिस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं इश्यूज करते रहे। आज भी आपने सुबह सुबह कोई प्रोग्राम लॉन्च किया पैनल। हाँ, आज हमने एक नेशनल थिएटर टॉक शो सीरीज शुरू किया है जो 50 डेज कंटिन्यूसली चलने वाला है। एवरी इवनिंग 4:30 नटरंग जम्मू के फेसबुक पेज पे वी आर नाउ। हमने एक इंटरनेशनल थिएटर टॉक शो किया था पहले। मेरा देखिए सर, there are certain limitations in COVID times. Theater is a live medium, it has to have the participation. Theater happens only, you need three things to create theater. One, the space where theater is to be performed. Second, an actor who's going to perform, maybe a single actor, it can make theater. There has to be a space. And third is the audience. Without that, in तीनों के बिना theater नहीं हो पाता। और ये कोविड सिचुएशन में तीनों को आप नहीं ला पाते। स्पेस में आप जा नहीं पा रहे हैं, थिएटर्स बंद हैं, ऑडियंस के साथ आप लाइव और इस तरह के माध्यमों से जुड़ रहे हैं, और एक्टर कहीं उस स्पेस में ना होकर के कहीं और जगह बैठा हुआ है। ऐसी चैलेंज में भी हम लोग वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर एक्टिविटी ताकि लोगों को का इंगेजमेंट रहे। हम लोग उनको कुछ असाइनमेंट्स दे करके कुछ पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि एक्टर्स को बहुत कम समय मिलता है उनके लाइफ में, उनके करियर में, बिकॉज देर ऑलवेज लाइक उनके ऊपर कोई ना कोई, दे आर ऑन द टोज। एक नाटक किया, उसके बाद दूसरा है, उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस है। तो ये जो उनका एक्सपोजर, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जहाँ एक दूसरे के साथ आदान प्रदान है, उसका सिलसिला कम होता है। तो इन दिनों हमने अपने एक्टर्स को इंगेज किया है टू लिसन पीपल, टू रीड अबाउट थिएटर, और जितना मैक्सिमम वो पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें हैं
बहुत सारे ऑनलाइन हमने सब्सक्राइब किए हैं जहाँ से थिएटर का लिटरेचर उनको मिल पा रहा है। कुछ अपनी लाइब्रेरी से भी हम लोग डिसमिनेट कर रहे हैं, पुछवा पा रहे हैं। ये अपने लेवल पे कोशिश, लेकिन ये ऐसी कोशिशें हर जगह हो नहीं पा रही हैं। मैं जो कोविड ने नुकसान करना है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कम से कम इस ट्रेडिशन को आर्टिस्टों का कहीं और जा सब कुछ फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ के कहीं और ना चले जाएं, ये भी हमारे सामने चैलेंज है। वी आर ट्राइंग टू, ये नहीं कहता इसमें बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस होगी नहीं, क्योंकि वी नीड दैट सिचुएशन ऑफ स्पेस, एक्टर एंड स्पेक्टेटर। जब इकट्ठे तीनों नहीं होंगे, थिएटर विल नॉट हैपन, दैट चैलेंज विल बी देयर, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट वेज। और मैंने ये देखा है कि हमारे पास जो 150 के आसपास जो काम करते हैं इस समय नटरंग में, उनमें से मेजॉरिटी आर स्टिल एसोसिएटेड बाय वन वे और द अदर। और बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, सोचते हैं कि इनको किस तरह, किन लोगों को कैसे इंगेज किया जाए डिस्कशंस में और चीजों में। जैसे हमने पिछले दिनों इंटरनेशनल थिएटर टॉक शो किया। आई इनवाइटेड, सिंस आई एम एसोसिएटेड, यूएस में बहुत सारे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, यूरोप में बहुत सारे लोग हैं, इधर अब साउथ अफ्रीका में भी हैं। तो इन लोगों को मैंने शोकेस किया और आई वी हैड 30,000 40,000 व्यूज, जो बहुत इंस्पायरिंग था हमारे लिए। ऐसे हम लोग हो सकता है कंबाइंड कुछ ही एक इंटीमेट स्पेस में 100-200 लोगों के बीच में करते और एक लार्जर ऑडियंस तक हम पहुंच पाए। कोविड का एक ये भी, ऑनलाइन का ये भी एक मुझे लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव मिला है कि हम लोग एक लार्जर लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। डायलॉग बहुत हो रहा है, lot of people are coming up and they are sharing their ideas, and there is a huge receptivity. That's very important. People are listening to each other, they are confronting, they are discussing, they are only adding on to ideas. And when you speak, when you go with the new ideas, when you listen to people, I think you get more inspiration to know more and more. तो जो उनका इस समय पढ़ने लिखने का एंगेजमेंट जो बहुत कम रहता था पहले, उसमें मैं इन लोगों को ज्यादा एंगेज कर रहा हूँ। और मैं जो आपके माध्यम से मेरे को लोग सुन पा रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम, जो भी समय है उसको आप पॉजिटिवली अगर यूटिलाइज कर पाए तो ये आपके लिए अपॉर्चुन मोमेंट है टू एंगेज योरसेल्फ विद द लिटरेचर। बलवंत जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके जो ट्रेंड हैं, जो जिन लोगों ने आपके साथ काम किया, कई सारे सीरियल्स, फिल्म्स और थिएटर में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं और कैरियर बना रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इस जगह पे, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए कि हम एक कैरियर बनाएं, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या करना पड़ता है? देखिए, मैं हर फोरम पे कह चुका हूँ, आई थिंक वी नीड ए चेंज, वी नीड ए लाइक एक मैं क्या बताऊँ, हम लोगों को आर्ट्स की तरफ ना इतना सैडिस्टिक नहीं रहना है। आर्ट्स हम लोग हमेशा हॉबी की तरह लेते हैं, जब कुछ नहीं हुआ चलो यार थोड़ी देर ये कर लेते हैं। अगर मान लो आपको इंजीनियर बनने के लिए, आपको डॉक्टर बनने के लिए, आपको किसी और बड़े प्रोफेशन में एज अ प्रोफेशनल आपको एस्टेब्लिश करने के लिए, यू इन्वेस्ट ए लॉट। पूरे घर में बैठा देते हैं बच्चे को, वहीं खाना आ रहा है, वहीं सब कुछ आ रहा है, आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। अरे साहब, इतना समय और इतना पैसा लगाओ ना किसी आर्ट में करने, उसके बाद आप फिर दूसरे अमिताभ बच्चन नहीं होंगे तो फिर मेरे को आकर के पकड़ना। माय पॉइंट इज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, हाउ मच टाइम वी आर इन्वेस्टिंग। हम सीखने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे में से कितने लोग विदेश जा करके कर पा रहे हैं जब किया होगा? अगर अभी किसी को बोले कि यार देखिए आपका बेटा अगर एमबीए करके आएगा यूएस से, तो इंडिया में आकर के उसको ₹1,00,000 की नौकरी मिलेगी, 1.5 लाख की नौकरी मिलेगी, तो अभी करने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ आई थिंक हम लोग एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स को मतलब फॉलो करते हैं। वी नेवर ट्राई टू गो बियॉन्ड वेज, ऑफबीट नहीं करते कुछ भी। और तभी है, देखिए, I also confronted a similar situation. You have been my not classmate, sir. You were senior to me by one like एक सेमेस्टर आगे थे हमसे, लेकिन ये दोस्त हम बड़े अच्छे थे, साथ में रहते थे, ये अलग बात है। और बहुत you have been a big sport. आप क्योंकि you started journalism while you were a college student, तो used to write about us. हम सब जितना काम करते थे शुरुआती समय में, अश्विनी जी हमारे बारे में लिखते थे, and has done lot of features on me, on our productions and all. तो आप देखिए ना, उस समय में भी कितने लोगों ने जो मेरे साथ थे, they withdrew because they were shaky, they were not sure that they can make a life out of it. It is possible and time is going to change. अभी कोविड सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी। आप विदेशों में जाकर के देखिए आर्टिस्ट की, आर्ट की क्या स्टेटस है, क्या लाइफ है, क्या रिस्पेक्टेबिलिटी है।
सोसाइटी की सबसे ऊपर वाली जो क्लास है वो क्रिएटिव लोग हैं। मैं बात लंबी हो जाती है। हाँ, नहीं, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट हाथ खड़ा कर रहे हैं, सो आई कीप इनवाइटिंग राहुल जी, राहुल शांता, आप म्यूट करिए। थैंक यू सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी का जो ये जमाना है, इसमें कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों की संस्कृतियों को ज्यादा मतलब लाइक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जमीनी स्तर पे जैसे पहले आपने कहा कि करियाला होता था, बहुत सारे गांव की जुड़ी हुई जो संस्कृतियां होती थी लोग उसे करते थे। गांव में हमारे बुजुर्ग होते थे जो कहानियां भी सुनाते थे। हमारे पास माध्यम नहीं था कि हम कुछ एंटरटेनमेंट के इस साधन नहीं थे जो आज। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम अपनी संस्कृति को तो पीछे छोड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमें नहीं लगता कि हमें कुछ लोगों में इस तरह की जागृति पैदा की जाए कि वे अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं प्यार भी करे और बढ़ावा भी दे? बिल्कुल करना। देखिए, हम किसकी नकल कर रहे हैं? आपने कहा कि हम लोग विदेशों की नकल कर रहे हैं। अरे साहब, अगर आप विदेशों की नकल करनी है तो करो ना यार। अगर उनकी नकल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप अपनी संस्कृति की तरफ जोड़ेंगे। आप किसी फ्रेंच को बोले, यहाँ पे आकर के बंदूक लाके बोले यार तू अंग्रेजी में 2 लाइनें बोल, वो कभी नहीं बोलेगा। ये है उनकी कदरें, उनकी उनकी रिस्पेक्ट फॉर देयर ओन लैंग्वेज। वो कितना उस चीज को बढ़ावा देते हैं। ये तो अगर उनसे और सारी चीजें, उनसे फटी पैंट पहनना सीख लिया आपने, और चीजें सीख ली, तो वो चीजें क्यों नहीं सीखी जो उनको कल्चर के लिए रिस्पेक्टबिलिटी। आई थिंक हाई टाइम हम लोगों को इनकी कदरें करनी चाहिए। करियाला के जो आर्टिस्ट हैं उनको हर आउट ऑफ वे जाकर के सपोर्ट करना चाहिए, उस चीज को बार बार करवाना चाहिए। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एजुकेशन है और एक बहुत बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी ट्रेडिशनल विजडम है जो उन लोगों के पास है। वो जो ट्रेडिशंस खत्म हो, वो लोग खत्म हो जाएंगे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं करेगी तो सारा कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा। आई थिंक वी नीड टू डॉक्यूमेंट, वी नीड टू प्रमोट, वी नीड टू टेल लॉट मोर पीपल। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लोग अपनी भाषा को लेकर के कितना ज्यादा करते हैं। मैं रोम में था, इटली में, तो क्लोजियम ऑफ रोम को लेकर के कोई 10 डायरेक्टर्स को वर्ल्ड ओवर से बुलाया गया था और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं भी उसमें से एक था। तो हम लोगों को ये टास्क दिया गया था कि अगर क्लोजियम ऑफ रोम को, जो वर्ल्ड वंडर है, उसको अगर फिर से, इट वाज अ प्लेस, इट वाज अ थिएटर बेसिकली, अगर आज इसको फिर से करना हो तो किस तरह की और काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस वहां हो सकते हैं। अपने एक मतलब जो जैसे भी आइडियाज बनते हो देने हैं। खैर, इट वाज ए ह्यूज एक्सरसाइज वो हो रहा था। तो वहाँ क्लोजियम ऑफ रोम एक टूरिस्ट प्लेस, बहुत लोग आते हैं। तो वहाँ एक मतलब एक शॉप थी, जो सोविनर शॉप थी, जो क्लोजियम ऑफ रोम की वो थे। तो मेरे वहाँ एक पट्टा सा लगा हुआ था, उसमें वो क्लोजियम ऑफ रोम वर्कशॉप दिस दिस दिस। तो उसने देखा, मेरा नाम, साथ में फोटो, इंडिया लिखा है नीचे। तो मैं अंदर दुकान में घूम रहा था, एक बड़ा अच्छा सा मुझे क्लोजियम का एक मेटल का मिला, जो नाना करते, तो 20 यूरो का था। तो मैंने उठाया उसको, तो पूछने लगा ऐसे, मैं क्या ये हाउ मच फॉर दिस। उसने मेरा पटा पकड़ा और ऐसे बोला, कहता स्पीक 1 लाइन इन इटालिया, टेक इट फ्री। एक लाइन इटालिया में बोल के सुना दे, फ्री ले जा। कैन यू बिलीव? आई वेंट बैक। मैं, मेरा वर्कशॉप चल रहा था, मैं दूसरे दिन फिर पहुंचा है उसी बंदे के पास, एंड आई गॉट दैट फ्री जस्ट बाय स्पीकिंग 1 लाइन। देखिए साहब, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी भाषा को लेके जाइए, उनको बढ़ाइए। ये भी दुनिया में कंट्रीज इन्वेड नहीं की जाती। अब चाइना से सीखिए, किस तरह से जिस मुल्क पे जा रहे हैं इसको कैप्चर कर रहे हैं, वहां चाइनीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये दिमागों में राज तभी कर पाएंगे जब आप अपनी कला को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे। और मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि जितने लोग कला संस्कृति को बढ़ाने की, जिनकी जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश में है, तो काइंडली डू दैट। हिमाचल का एक्सटेंशन पूरे देश में तभी हो पाएगा जब हम अपनी भाषा को आगे ले जाएंगे, जब अपनी संस्कृति को वापस आगे ले जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। उतना प्यार करेंगे।
उतना प्यार करेंगे, टेक प्राइड, वो तो मैंने देखा है, मैं तो हिमाचल में रह चुका हूँ, एवरी हिमाचली टेक प्राइड इन बीइंग हिमाचली, ये तो मैंने ये देखा, ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है हमारे पास, हिमाचल में हमारे बहुत पास पॉसिबिलिटी। बलवंत जी अगर आए होते तो आपको शाल और टोपी तो जरूर देते, बट हम भिजवाने की कोशिश करेंगे आपको। That's a big gesture, that's a big gesture। और हिमाचल की मतलब मैं ये लाइन फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हिमाचल में मैंने एक चीज प्रेज वर्दी देखी है कि टेकिंग प्राइड इन हिमाचल बहुत ज्यादा है, और इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है फॉर टर्निंग दैट इमोशन, टर्निंग दैट सेंटिमेंट टुवर्ड्स देयर ओन कल्चर। दे नीड टू सपोर्ट। गांव में अगर मेरे यहाँ शादी है तो भैया मैं कोई वेस्टर्न चीज नहीं लाऊंगा, लेट मी प्रमोट माई ओल्ड ट्रेडिशनल परफॉर्मर्स, और वो गाएं बजाएं, ये ऐसा करें। माई डॉटर गॉट मैरिड ओनली फ्यू इयर्स बैक, व्हाट आई डिड, मैंने मतलब एक अपने गांव के जितने भी, अरे लोग कहते हैं वो बैंड ये बैंड, मैंने कहा मेरे यहाँ कोई ये डीजे तो खैर विदेशों में भी बाहर फेंका हुआ, इट्स अ न्यूसेंस बेसिकली। आई ब्रॉट एवरीथिंग ऑफ दैट, एंड कैन यू बिलीव फॉर days together entire Jammu was discussing that। अरे क्यों नहीं है अप्रिसिएशन पीपल, और लोगों ने सेल्फियां खिंचा खिंचा के उनके साथ फोटो खींच के रिकॉर्डिंग है उनकी, फिल्में बना बना करके, मैंने आई डिड कुड, आई डिड गीतड़ू, आई डिड पाखा, आई डिड सोई, मैंने मतलब कि पूरा कल्चरल शोकेसिंग कर दिया। शादी कम थी, कल्चरल शोकेसिंग ज्यादा थी, बिकॉज आई न्यू इट हु इज हु ऑफ जम्मू इज गोइंग टू कम टू माय डॉटर्स मैरिज। और देन मेरी बेटी इंग्लैंड में शादी हुई, विदेश से लोग आए थे, उनको भी मैंने दिखाना था कि भैया ये हमारा कल्चर है। तो इस तरह करिए आप। बलवंत जी, यही आपकी स्ट्रेंथ है कि आप अपने रूट से जुड़े हुए हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं। आपकी एक पुरानी साथी आपको याद आएगा, वो आपसे सवाल पूछना चाहती है, आरती सूद। अरे क्या बात क्या है, नाइस टू सी, थैंक्स शिमला यूनिवर्सिटी। आरती जी अपना सवाल पूछिए, जहाँ आपने बात कर रखी है। अपना अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट कर। हाँ जी, नाउ यू आर ऑडिबल। नमस्कार जी जी। मेरे सवाल तो क्या पूछूं, बहुत कुछ आपके पुराने कार्यक्रम में भी मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, आपके बारे में देखना, आपके बारे में पढ़ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये गर्व फील होता है कि हम भी आपकी जर्नी का एक छोटे से समय में छोटा सा हिस्सा रहे। जो लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर सुन पा रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये बताना चाहूंगी, जैसा अभी इन्होंने कहा कि हम कुछ नया करें, तो 80 के दशक में कितना बेहतरीन था आपके नाटक, शंकर शेष के नाटक पोस्टर में मुझे भी कार्य करने का मौका मिला था। आपने लीड प्ले किया उसमें? हाँ, और कितनी बेहतर बात थी, मुझे अभी भी मेरी आंखों के सामने वो क्षण है जब आपने हमारी ऑडिशन ली थी। उससे पहले इतना प्रोफेशनली कोई ऑडिशन होगा, किसी को मालूम ही नहीं है कि किसको क्या रोल मिलने वाला है, वो कुछ पता नहीं था, तो मेरा चयन हुआ। इतना मजा आया था, मैं उसे आज भी फील कर सकती हूँ कि गेटी में हमने वो नाटक कैसे किया। लेकिन जो बात है कि नया क्या करें, तो नाटक का नाम था पोस्टर। माल रोड पर सब लोग घूमते हैं, तो माल रोड पर आपने जितने भी वो शॉप्स थी उनके अंदर एक पोस्टर लगवाया, तो वो बाहर से दिखने पे लगता था, उस पे लिखा था सिर्फ पोस्टर। तो जो भी लोग वहां से आते जाते थे वो पूछते थे ये पोस्टर क्या है, पोस्टर क्या है, क्योंकि उसके नीचे आगे पीछे कुछ कहीं नहीं लिखा था। तो उन्हें बताया गया कि ये पोस्टर नाटक का मंचन होगा गेटी थिएटर में, टिकट उसके हॉल के बाहर मिलेगा। मुझे अब भी याद है, वो पूरा 3 डे हॉल फुल ऑन पेमेंट बेसिस शिमला में। तो अगर 80s के दौर में ये हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता। और जो मुझे महसूस होता है, बहुत से मतलब बहुत से जो नाटक करने आते हैं, नाटक एक ऐसा जुनून है, बस आपकी जिंदगी है। युवावस्था में तो बिल्कुल बहुत, क्योंकि तब हम मतलब जिंदगी से बहुत ज्यादा परिचित नहीं होते, तो कहीं जैसे युवा ये भूल जाते हैं कि उस यात्रा में आपका अध्ययनशील होना, ज्ञानशील होना बहुत जरूरी है। वो बस आ गए, थोड़ा सा सीख लिया, बस उसी भ्रम में रहे। एक छोटी सी बात, आपका बड़ा कीमती समय है, मतलब वो दुनिया एक ऐसी होती है कि हमको ये लगता है कि सब हमको जानते हैं,
कल हमने नाटक किया, अगले दिन अखबार में नाम आया। तो इतना हम उस भ्रम में जीते हैं कि हर व्यक्ति ने नाटक देखा होगा, हर व्यक्ति ने ये अखबार भी पढ़ी होगी, और वो हर व्यक्ति हमको जानता होगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इस तरह का, अब आप हैं, एक जम्मू में हैं, लेकिन जम्मू से दुनिया के हर हिस्से में आपको कोई जानने लगा, तो उस यात्रा में जो मेहनत है, लगन है, परिश्रम है और एक प्रतिबद्धता है, उसको युवा कैसे अडॉप्ट करें अपने जीवन में, ताकि और कुछ बलवंत ठाकुर आने वाले समय में आगे आ पाए। तो इसके लिए भी मार्गदर्शन रहेगा, और मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। आरती जी, थैंक यू आरती जी, यू आर वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल। और अश्विनी जी के साथ भी बहुत वर्षों से, और जोशी साहब गुरु समान यहाँ मेरे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगी, मुझे थोड़ा वक्त दिया। आरती जी, बहुत अश्विनी जी, मतलब एक क्योंकि आरती ने एक बात कही है, तो मैं आप रिलेट करना चाहता हूँ। हो सकता है जितने नए युवा हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। होता क्या है कि हम लोगों के सामने, जैसे इसने कहा कि मैंने नाटक, खैर उन दोनों हिमाचल की कहानी करते करते मैं इवनिंग में फ्री होता था, तो आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने आप को यूटिलाइज कर पाऊँ। दिन भर तो मैं हिमाचल की कहानी पे काम कर रहा होता हूँ, शाम को हम लोग एक नाटक करते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, ऑडिशन वो सब। ये नाटक की पब्लिसिटी, क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, यू नीड टू क्रिएट दैट क्यूरियोसिटी प्लीज। आइडिया इज दिस, लुक एट, मैंने पूरे शिमला को पागल किया। कैसे किया? अब ये आरती ने जो बताया वो आपको पूरा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें करनी थी तो ये 2 लाइनों का रेफरेंस थे। मैं आपको बताता हूँ क्या किया। हमने बड़े बड़े चार्ट लिए और चार्ट के कोने में सिर्फ पोस्टर लिखा और उसके अंदर कुछ नहीं, और पोस्टर लेकर के पूरे शिमला में, लोअर में, अपर में, उधर जाकर के कोई 200-300 पोस्टर लगा दिए। शाम को, चूंकि हमारे शिमला में एक ट्रेडिशन है कि शाम को सब लोग माल पे सैर करेंगे, और माल ही में ही कम से कम 50-60 पोस्टर लगे हुए। हम लोग अपने, क्या था कि ये बड़े चीज करने के लिए बहुत सारे ड्रामे करने पड़ते हैं, बीच में अपने लोग छोड़ दिए कि यहाँ जहाँ डिस्कशन चल रहा है तो सुन यार क्या हो रहा है। कैन यू बिलीव, मुझे रिपोर्ट आता है शाम को कि वहां वो जो स्कैंडल पॉइंट क्या बोलते थे वहां से लेकर के आगे तक वो जो आइसक्रीम वाला है, वहां तक एक ही चर्चा है पूरे शिमला में, यार ये पोस्टर क्या है? यार ये पोस्टर क्या है ना? एक चार्ट के ऊपर पोस्टर है, तो पोस्टर ही तो होता है, तो पोस्टर है क्या यार? ये सिर्फ हमने करा, और बिल्कुल हमने ये रिवील नहीं किया कि पोस्टर है क्या। फॉर 10-15 डेज ये चर्चा जब बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंची, तब जाकर के उसी जगह का जो सब बचा हुआ स्पेस था उसमें जाकर के फिर से लिखवाया गया, पोस्टर नाटक गेटी थिएटर में इस दिन। अब सबने कहा यार इसने इतनी चर्चा बनाई है, ये तो देखना ही है। तो दैट्स हाउ वी गॉट हाउसफुल आल्सो। You need to experiment. You need to be innovative. You need to be new. Please, okay, I respect traditions. You need to follow certain legacies, certain tried and tested methods. But you being a creative person, you need to come out with just new ideas. मैंने एक नाटक किया था जम्मू में, भोमा। मैंने, चलो तो न्यूसेंस था, गलत था, चलो जो किया, हमने पेटियां चाक की लिया, और चूंकि नया वर्कशॉप था तो किसको पूछा, आप कहाँ है? रिहाड़ी। आप कहाँ है? मैं गांधीनगर। आप कहाँ है? मैं शास्त्री नगर का। तो हर एक को एक एरिया कमांडर, हमारे यहाँ नई नई मिलिटेंसी आई थी तो एरिया कमांडर शब्द बहुत फेमस था, तो मैं कहा तू एरिया कमांडर है शास्त्री नगर का। तो शास्त्री नगर में बच्चे, हर घर में जाके मैं पूछूंगा तो उनको पता होना चाहिए आपने पढ़ा भोमा? लिखना कुछ नहीं, खाली भोमा लिखना है, भोमा 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 भोमा। पीपल केम आउट विद राइट अप कि भोमा कोई पार्टी आ रही है, कोई पोलिटिकल विंग आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, इतना ज्यादा कर दिया। उसके बाद फिर देन डिक्लेयर किया कि भोमा इज अ प्ले गोइंग टू हैपन इन अभिनव थिएटर जम्मू। दैट्स हाउ देन द पीपल वर मैड टू सी दैट, भाई जिसकी इतनी चर्चा है कुछ तो होगा वहां, तो कुछ होता भी था। ये मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूँ, वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। आई थिंक जो व्हेन यू सेल थिंग्स, मार्केटिंग चाहिए। सेलिंग डजंट मीन, बट यू नीड टू रीच टू दैट क्वालिटी। क्यों? Why people are ready to pay 30,000 Indian money के हिसाब से 40,000 for one seat in Royal Shakespeare Theatre or some other theatre, in the National Theatre in London? Why people pay?
because they give you that quality. आपको नाटक देखने के बाद ये नहीं लगता you have been cheated. आपको लगता है no, आपने देखा है, you have seen something worth. So we need to reach that quality. तभी जाकर मुझे लगता है theater can become a movement. Please. काफी सारे questions आ रहे हैं. I'll allow Akanksha ji to pose a question. Akanksha ji, she's a teacher. No, she may have left. Sir, there's another question that there. I'm here, sir. Good afternoon, yeah, sir. Yeah, please carry on. My question was that, sir, is it possible to merge two different states' culture in theatre? Can we merge to a culture of two different states in one theatre? See, please always keep one thing in mind, that there's no hard and fast rule for any art performance. You can do anything, but it should suit that. It should not look out of place. Okay. I have seen people, वो तो आप states की बात कर रहे हैं, वो तो nations को लेकर के, मैंने recently I did a fusion performance of Indian classical dances and yes. South African dancing traditions. Yeah. जबकि आपस में relate नहीं करते, but there are certain things, certain similarities, I think, which we all have, because we have a lot of shared history with South Africa. We have seen the similar kind of struggle, the struggle which they have seen. So yeah. You can always relate. It's up to you. आपका जो total narrative है, जो आप एक creation create कर रहे हैं, it should not look out of place. It should not look as a fashion. It should not look as a exhibitionism. Okay, ये अभी इसके बाद ये आया, वो उसको relate नहीं करे. It should assimilate with that. Okay. I think there's no hard and fast rule. You can do anything. If you want to use the Kalari part of Kerala and then start doing Bhantada of Himachal Pradesh, you can use it, because both are more a martial kind of thing. There's another tradition in Himachal where you hit a person. Na? What is it? Thoda. Huh? Thoda. Thoda. Huh? It's a martial. It's art. Yeah. You can relate to that with any South Indian tradition. There's no hard and fast rule. जोशी जी, आप बोलेंगे कुछ? जोशी, एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि जो हफीजा लोक नृत्य है आपका, वो तो फिल्मों ने, जो मिशन कश्मीर में बुमरो श्याम रंग बुमरो से काफी लोकप्रिय हो गया. तो आपकी तरफ का, जहाँ वैष्णो देवी की तरफ का कूद नृत्य होता है, कूद, तो वो कूद जो है, उसके जो कुछ स्टेप्स हैं, क्या कभी आपने कोशिश करी उनको अपने नाटकों में लाने की? क्योंकि यहाँ पर पेहर सिंह ने कुल्लू के बहुत नाटक कर रहे हैं. आज भी उनका एक नाटक है लाइसेंस. ओके. और वो नाटक उन्होंने, आपने भी वो प्ले देखा था, भगवान का पूत, जब रंग प्रतिभा हुई थी 2011 में, आप भी आए थे उसमें. तो भगवान के पूत में उन्होंने मंडी के फोक नृत्य के स्टेप्स लाए थे वो. तो क्या कभी आपने ऐसा कोशिश करा है कि आपके जो लोक नृत्य हैं उनको अपने नाटकों में आपने कभी प्रवेश करवाया है? बिल्कुल सर. अगर आप इफ यू रिमेम्बर, नाटक बाबा जित्तो में वो था कुड, मैंने जो कोरस था वो सारा कुड करके एंटर करता. उनकी एंट्री और एग्जिट्स मैंने कुड स्टाइल में करी थी. और इनफैक्ट वो जो सेलिब्रेशंस थी, वो जब वो खेती करते हैं और बहुत ज्यादा कनक हो जाती है, तो उसको कनक को इकट्ठा कर रहे हैं, कनक बन रहे हैं, तो सारा इंटायर इवेंट मैंने इमेजिनेशन, वो कुड का रिदम और कुड डांस को एसिमुलेट करके बनाया. तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ट्रेडिशन मेरे रीजन का है जिसको मैंने नाटक में इस्तेमाल नहीं किया. यहाँ मुझे लगता है कि इस चीज को कहने के लिए मेरा एक मल्टीप्लिकेशन होता है, एक इन्हांसमेंट होता है मेरे परफॉर्मेंस का, और ये डिवाइस और ये एलिमेंट जो है ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है. मैं तो सबसे पहले इसको यूज करूँ. बलवंत जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई थिंक आपकी ऑडियंस बहुत बढ़ती जा रही है. स्वप्निल हमारा कुलीग है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, ये कुछ पूछना चाहते हैं. जी. स्वप्निल. सर, गुड आफ्टरनून सर. या, गुड आफ्टरनून. प्लीज सर,
My question was that how can a private organization working for the promotion of local artist and culture contribute towards it? Private, I'm not getting it. What kind of private organization? You are talking of some commercial organization, and they need to see, you know, every like business house, they under CSR, they should support culture. If you're talking of that, a local community of the business houses, they need to support art. Here, you know what we do in Jammu and Kashmir, we catch hold of these people. We tell them we have got a larger responsibility to support art, and that 2% of your income you have to devote for art. So we make them to promote, make them to sponsor and all. I think you people also need to identify the big houses in Himachal Pradesh and approach them, give them a proposal so you can get some kind of support from them. See, corporate sector is supporting much more art and culture in India than the government sector. See, look at Tata, they have created this National Center of Performing Arts. Look at DCM, they have got Kamani Auditorium, Shriram Center. There are a lot many. I think Mahindra and Mahindra, they are doing a complete festival in India. And in South, and particularly in West Bengal and all, a lot of ITC and all, these organizations are coming up, and I think they have no limit. In government, you go to them, they have certain limits. Okay, we can support only up to this level. But I don't think private organization has any limit to support you. If you're talking of that. Balwantji, I think his question has been replied. Because you are working at the international platforms now. So how is the India's image abroad when you take your cultural programs at the stage in different countries? So what do they feel about India and its culture? See, one thing is there that we have been the world leaders in culture. India is the one, I think, which gave a lot of things to the world. The majority wisdom has originated in India. We need to look at our Vedas, the Natya Shastra, the oldest dramaturgy and the oldest document available on this earth. People have a lot of curiosity. People have a lot of like thirst for Indian traditions, Indian culture. Fact remains that if I showcase, say, I did Festival of India in South Africa, and I chose Pretoria, Cape Town, Johannesburg, and Durban for that festival. Can you believe if I had an auditorium of 1,000 seating, there used to be requests ranging between 5,000 to 6,000 people who wanted to see India, the Indian traditions and all. But our problem is that you need to have a consistency. You need to have it to be very regular. If you create some kind of thrust, say in Pretoria, some universities, we did that festival, and then people started coming out, and they wanted, okay, we not want to learn Bharatanatyam, we want to learn Kathak, we want to learn Sanskrit, we want to learn Hindi. Then you need to have a follow-up. In majority of India, since I'm associated with that, I have no right to criticize, but there are certain lacunas I think we need to underline. We as Indians lack consistency. We as Indians lack that kind of total policy implementation. We just do something for the heck of doing it. Okay, we did festival, done. We never see that what kind of impact that festival has left in that country. And then we do certain follow-up things. So we open certain schools. We in Swami Vivekananda Culture Center, we have a music department, we have a yoga department, and there's a huge respect for India. Can you believe? Not only me, but we have 40 Indian culture centers abroad, and everybody tried. But since I always thought I wanted to go beyond ways, I introduced yoga in a very different manner. Yoga in COVID times. How yoga can help you in boosting your immunity. Can you believe I had endless number of people who wanted to be a part of it? Because since for the entire South Africa, yoga was something very new. When yoga is spreading, we need to keep that thing in mind. It's India.
which is getting respectively all over. So what I did, when I was not able to cater to the demand, I trained the trainers. And in every, what we call in every province, we created a team. This is how we extended. The last 21st June, we had yoga from 7 centers, and each center had its own audience. So this is the way. I think there's huge respectability for yoga. There's huge respectability for our classical things. There's a huge respectability for Indian classical dances, Indian classical music, of course, theater as well. But we don't have that quality of classical theater with us. The repertoires in India are not that of that quality. We need to match that quality. Okay. You will be astonished to see the kind of quality which they have. We need to reach to that. I've been telling at every forum that where's the national theater in India? Whereas they have provincial theaters, they have national theaters, they have city theaters. We don't have that kind of infrastructure, that kind of a lot of more efforts is required. Oh, I think we are far behind. Still we have tried. We have a lot of hopes from you. And it has been a very wonderful session. I think we come to the conclusion of this session, and I'm really grateful to you. You're sparing time. And there's one last question pouring in for Mr. Joshi only. So somebody wants to ask that you cleared Himachal Administrative Service exams in 74. So what has changed till now? What kind of stuff you are getting in the services? What kind of feel the officers have about the development and local issues as compared to your time? I have to reply on it. Yeah, sir. Okay. You know, work culture has declined everywhere. Not only in administrative service, it has declined in any service you take up. And it has also declined in journalism. Don't mind it. But it has declined. And the old journalists, I still remember the old journalists who were working in the papers, and they have been writing so well. I mean, you can't change even a comma from that. But today, the journalism has gone awry. And similarly, the work culture in the administrative service has also gone down. I have to, when I go to, earlier there used to be rules of business, and on that rules of business, there were standing orders. In that standing orders, it was clear that this file will go up to the under secretary, this will go up to the joint secretary, this will go up to the secretary. But today, when I go to a secretary, he says that I have sent the file to the minister. मिनिस्टर का अंगूठा भी लगा लेना चाहिए उसको, ठीक रहता है. तो ये इस किस्म की जो बातें थी पहले नहीं होती थी. हमारे लेवल पर जब हम जॉइंट सेक्रेटरी होते थे या स्पेशल सेक्रेटरी होते थे या एडिशनल सेक्रेटरी होते थे, हम अपनी लेवल पर जो हमारे कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मिला हुआ है हम उस पर काम करते थे और उसके अनुसार अपने को डालते थे. लेकिन आज ऐसा नहीं. आज ऐसा है कि आपको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है. किसी तरह से ये हमसे निकल जाए, किसी दूसरे को मिल जाए तो भला है. कभी तो आप आज ऑक्सीजन की कमी देख रहे हैं, शायद ये भी एक कारण है. ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इसके लिए कोशिश नहीं कर रही. बहुत कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है. लेकिन ये कोशिश जो शुरू में होनी चाहिए थी वो तब नहीं हुई, ये थोड़ी सी देर से हुई. बस जोशी जी, एक मैंने कहीं सुना था, आपने कोई एक एनेक्डोट है कि कन्वीनियंट ऑफिसर. हाँ, वो मेरे लिए कहा गया था कि he is a competent officer but he is not a convenient officer. So that is why we are transferring from Kangra. Thank you very much. Thank you. With this, we come to the end of this wonderful. मैंने बलवंत ठाकुर जी से एक बात पूछनी और. चलिए सर. जब
M.K. रैना, आप जानते हैं ना M.K. रैना को? जी जी जी, क्यों नहीं। M.K. रैना ने भांड पाथेर में किंग लेयर किया। किंग लेयर के लिए जब उन्होंने किया, उसका नाम रखा बादशाह पाथेर। ये मेरे को अभी मिले थे, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में एक सारे ड्रामेटिस्ट आए थे, प्रसन्ना भी आए थे, रश्मि जैन भी आई हुई थी, ये M.K. रैना भी आए थे, आप नहीं आए थे। तो मैं विदेश में हूँ आजकल। नहीं, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2 साल तो शायद उस मैं 2 साल अभी से ज्यादा समय हो गया मुझे विदेश में। अच्छा, तो उसमें मैं ये कह रहा था कि जो बादशाह पाथेर किंग लेयर का हुआ था, उसको लोगों ने काफी अच्छी तरह से स्वीकार किया था, उस इलाके के लोगों ने। तो क्या और क्लासिक इसमें नहीं हुए हैं भांड पाथेर में? जैसे हमारे भूपेंद्र शर्मा थे, वो आला अफसर को करियाला स्टाइल में करते थे, और उनके कई नाटक ऐसे हैं जो करियाला स्टाइल में हुए। ये मतलब एक तरह से अपना जो फोक थिएटर है उसको बढ़ावा देना है। क्या समझते हैं आप इस? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है और ये करना चाहिए। और जब हो सकता है, अगर आप वो फिल्में देखिए, हैदर पे फिल्म बन गई, मैकबेथ पे बन गई, हैमलेट पे बन गई, अगर और इतनी इंडियन ओरिएंटेड फिल्में, वो कभी उनमें हैमलेट नहीं लगता, ना मैकबेथ लगता है, ना ओथेलो लगता है। तो माय पॉइंट इज रीजनल और लोकल चीजें करने। माय डॉटर इज आल्सो इनटू थिएटर प्रैक्टिस। वो अभी आजकल इंग्लैंड में है, लेकिन उसने जब यहाँ कुछ देर रही तो उसने मेजॉरिटी ऑफ शेक्सपियर मुझे कहती, नहीं नहीं आप। मैंने कहा मैं भाई शेक्सपियर को हाथ नहीं लगाता अभी। ये नहीं कि मैं आई हेट शेक्सपियर, बट आई एम मोर कीन। मैं अपनी चीजों में, अपनी मिट्टी में, उन चीजों में खेलना मुझे अच्छा लगता है। बट नाउ शी वेंट, शी इज अ ट्रेन्ड डायरेक्टर फ्रॉम रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। जब वहां से वापस आई तो फर्स्ट थिंग विच शी स्टार्टेड डूइंग, she did majority of Shakespeare। 12th नाइट यहाँ पे उसने किया। अंग्रेजी में या उसका हिंदी में? अरे सर, लोकल सब कुछ, मतलब उसको लोकलाइज कर दिया। अच्छा, 12th नाइट अपना हो गया हमारा। और ये मिड समर नाइट्स ड्रीम, उसको टोटली लोकल कर दिया। रोमियो जूलियट को टोटली लोकल कर दिया। शी डिड 3 प्रोडक्शंस और अमेजिंग, एंड पीपल कुड रिलेट। लोगों को शेक्सपियर मतलब देखिए, कॉन्सेप्ट वाज दैट, बट वो सारा उसने एक किया। उसने शी वांटेड दैट प्रोडक्शन। अभी फिर से कोविड हो गया, हालांकि लंदन के लिए सिलेक्ट हो रहा था बाद में। उसने फिर उसको और चेंज करके 12th नाइट को बॉलीवुड स्टाइल में किया, टोटल बॉलीवुड। ऐसे ही वैसे हर सीक्वेंस पे गाना आ रहा है, उसी तरह से सब कुछ हो रहा है। तो वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट देयर इज अ प्लेस इन इंडिया कॉल्ड किंगडम ऑफ ड्रीम्स, सुना होगा आपने, गुड़गांव में है, जो म्यूजिकल्स और बड़े मेगा म्यूजिकल्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने, जो दे वांटेड टू रेप्लिकेट ब्रॉडवे थिएटर इन इंडिया। आपको, आप में से किसी ने को देखा होगा जरूर। अब तो खैर कोविड के चलते बंद हो गया। जो बड़े म्यूजिकल्स हैं वो, इनफैक्ट शी परफॉर्म दैट प्ले इन किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो गुड़गांव में था, एक बहुत बड़ा सेटअप है जो टोटली हाईटेक था। उसमें भी उसने अपना 12th नाइट किया। तो ये एक बहुत ही इनकरेजिंग चीज है। जब इन्होंने अब किंगलियर किया, M.K. रैना जी ने, तो कभी वो वाला किंगलियर नहीं लगता था। वो पूरा कश्मीरी नाटक लगता था। उसकी सारी, उसका स्ट्रक्चर, स्टाइल और सिचुएशंस, और वो उस तरीके से अडेप्ट किया गया था कि लगता था कि वो कश्मीर का नाटक है, वो कश्मीरी भाषा का नाटक है, कश्मीरी मिट्टी से निकला हुआ। इस तरह के प्रयास आपने ऐसे सुनाया कि करियाला में किए गए हैं। ऐसा करना बहुत जरूरी है। उससे एक तो आपकी लैंग्वेज प्रमोट हो रही है, आपका कल्चर प्रमोट हो रहा है, और मतलब आप एक लार्जर कल्चरल काज को सपोर्ट करते हैं इस तरह के काम। और एक जरूर करने जी, थैंक यू वेरी मच जोशी जी, and over to Prachi now, and then our star sirs will finally take over from Prachi. Thank you Balwant ji, thank you Joshi ji. Thank you ji. Thank you. Thank you so much, sir. So it was a really wonderful session, and I could see the happiness in everybody who is related to theatre here, be it Balwant sir, Joshi sir, or even Aarti ma'am. I could see the emotions attached, sir.
So ये बात बिल्कुल सही है कि मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत चीजें बदल गई हैं, और कल्चर जो है बेसिकली रूट्स हमारी विलेजेस से रिलेटेड है. सो इट इज द culture that we have to renew, and it is the total responsibilities on the youth, not only the people who are related to the theatre or to the cultural heritage. तो इसकी मेंटेनेंस सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं है, but it's also on the youth. So sir, thank you so much for giving this wonderful message to our students and to everybody who has been a participant of today. And with this, I would like to invite our honorable Registrar, Dr. Anil Pal sir, to please come and deliver his thank you speech to our esteemed speakers today. Okay, thank you, Prachi. On the behalf of APG Shimla University, I heartily thanks to Padma Shri Balwant Thakur sir and SN Joshi sir for giving your precious time to our university. I also thanks to Professor Dr. Ramesh Chaudhary sir, Vice Chancellor Venkateswara Open University, Professor Dr. Ramesh Chauhan, Vice Chancellor APG Shimla University, Engineer Suman Vikram, Advisor APG Shimla University, Ashwini Sharma, Moderator of today's webinar, Dr. Prachi Ved, all heads, deans, faculty members, and my dear students. Thank you to all. Over to Prachi. Thank you, sir. So this was a really wonderful session, and I thank you all for being here today and sparing us your valuable time, sir. Thank you so much for the session. With this, we end the session today. Thank you so much.